and thank you, Sameer, for ये अभी organizing इंट्रोडक्शन the चालू हो session. रहा है मैडम आपका. Just wait. जी, It is just yeah, yeah, starting. Yes. Over to yeah, Samar. yeah. Amrita, they'll Sure, introduce you and then हाँ you वो can सब start, right? I प्रोटोकॉल के believe. साथ होगा मैम, चिंता नहीं. Yes. sure. Great. Greeting and warm evening to all from Imperial Money Private Limited. We are honored to have Miss Amrita Mohanty ma'am with us, a seasoned professional in the financial industry and one who don't need any introduction. Today's speaker has been with Sundaram Asset Manager as a Chief Learning Officer long term in action. With over 21 years in the BFSI sector, her career is marked by significant contribution to learning and development. Knowledge is a limitless ocean, always evolving and always interesting. To guide us through its depth, we are privileged to host a beacon of intellectual evolution, Mr. Amrita Mohanty. Her journey in the realms of this field has illuminated countless minds, and her dedication to understanding and is truly inspiring. अस्मिता Let's एक give मिनट a थांब, warm अस्मिता एक मिनट थांब, एक Miss मिनट, एक मिनट. Amrita Mohanty ma'am and let us seize the opportunity to gain valuable knowledge and हाँ अस्मिता बोलो. Greetings and warm evening to all from Imperial Money Private Limited. We are honored to have Miss Amrita Mohanty ma'am with us, a seasoned professional in the financial industry and one who don't need any introduction. Today's speaker has been with Sundaram Asset Management as a Chief Learning Officer long term in action. With over 21 years in the BFSI sector, her career is marked by significant contribution to learning and development. Knowledge is a limitless ocean, always evolving and always interesting. To guide us through its depth, we are privileged to host a beacon of intellectual exploration, Miss Amrita Mohanty. Her journey through the realms of this field has illuminated countless minds, and her dedication to understanding and sharing knowledge is truly inspiring. Let's give her a warm welcome to Miss Amrita Mohanty ma'am and let us seize the opportunity to gain valuable knowledge and perspective on the ever-evolving world of mutual fund. Do show clapping signs on your Zoom. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ashmita, for the wonderful introduction, and really grateful to Deep Sir to have partnered with Sundaram Mutual Fund to conduct a training for his esteemed organization and for his valuable channel partners and mutual fund distributors. And kudos to Sameer of Sundaram, who was instrumental in getting this training program organized. I hope I live up to the expectation and stand tall in terms of training. And Deep sir has chosen a wonderful topic, which is how to do sales effectively. And I मैडम think एक say, सॉरी टू इंटरप्ट मैडम, आप yeah, थोड़ा yeah, सा इंग्लिश में इसको लेंगे तो दैट विल बी रियली ग्रेट हेल्प. आप yes, yes, आपसे yes. विनंती है कि आप इसको थोड़ा हिंदी प्लस इंग्लिश में ही करें. थैंक यू. जी सर, थैंक यू मैडम. थैंक यू. थैंक तो यू. दीप सर ने ये कहा कि एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक दीप सर ने सजेस्ट किया कि हाउ टू मैनेज सेल्स इफेक्टिवली. And that is the essence of today's program. And I hope you can see my screen. आप मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज को I hope मतलब स्क्रीन को देख सकते हैं और आवाज को अच्छे से सुन सकते हैं. एक बार मुझे इसका आश्वासन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूंगी. चैट बॉक्स में डाल देते हैं आपके लिए. जी, तो चैट बॉक्स को एक्टिवेट किया गया है, आप उसमें प्लीज अपना जवाब दे दें. ओके, ग्रेट. तो थैंक यू रोहन, थैंक यू दीप, थैंक यू सत्या, थैंक यू शाओमी, थैंक यू चेतनी, थैंक यू भूषण, ममता, लक्ष्मण. ग्रेट. तो देखिए, सेल्स जो होता है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और उसमें काफी सारी सीख मिलती है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल्स में ये है कि वी हैव टू हैव द पैशन. हमारे पास पैशन होना चाहिए टू मीट इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब भी हम ग्राउंड में रहेंगे और बहुत सारे डिस्कशंस में हम अपने आप को एंगेज करेंगे, वहां से ही हमारी एक्सपीरियंस बनेगी और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारा नॉलेज बढ़ेगा.
और इसके साथ साथ लेट मी टेल यू कि ये प्रोग्राम जो है काफी इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तो प्लीज आप उसका जवाब चैट बॉक्स के सहायता से जरूर दीजिए। और मैं शुरुआत ही करती हूँ एक क्वेश्चन से। और आपने परेटो प्रिंसिपल का नाम तो जरूर सुना होगा, आई एम श्योर। उस परेटो प्रिंसिपल को 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है 80-20 प्रिंसिपल, जिसको परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है, व्हाट इज इट? कि is it a concept that suggests roughly dash percent of result comes from dash percent of cause or input? So what is that? Is it option number 1 कि 80% of result जो है वो 20% of inputs के कारण आता है, या 20% of results जो option 2 है वो 80% of causes या inputs के कारण आता है, या 50% of results जो है वो 50% of causes और inputs के कारण आता है? आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? तो ज्योति कहती है इट्स ऑप्शन नंबर 1, कैलाश कहते हैं ऑप्शन नंबर 2, संदीप कहते हैं ऑप्शन नंबर 1, शिव शंकर जी कहते हैं, ममता कहती है ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग योर रिस्पॉन्स। इसको एक सैंडबॉक्स की तरह समझिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जहाँ पे आपके पास पूरी छूट है टू गिव आंसर, क्योंकि मैं सेबी की ऑफिस को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, मैं रेगुलेटर नहीं हूँ। तो आपका इंटरेक्शन जो है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रादर देन द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज कि देखा गया आपको 50% ऑफ रिजल्ट जो है वो 50% ऑफ कुछ चीजों से मिल सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर 80-20 का नाम है, इसका मतलब है कि 80% ऑफ रिजल्ट्स जो है वो 20% ऑफ एफर्ट्स, या 20% ऑफ एक आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाया, आपके 20% ऑफ क्लाइंट्स है वो आपको 80% ऑफ बिजनेस दे सकते हैं, 80% ऑफ AUM दे सकते हैं। और ये प्रिंसिपल जो है उसको विल्फ्रेड पेरेटो ने बनाया है, जहां वो बेसिकली एक इटालियन हुआ करते थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 80% लैंड इटली में है वो 20% जनता ओन करती है। और इसका हमें कॉन्टेक्स्ट बहुत जगह पे मिलेगा, इनफैक्ट एक किताब भी है 80-20, वो आपको बताएगी कि आप अपने जीवन में कैसे किन टेक्निक्स के सहायता से आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो देर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये है। लेकिन सम पीपल से कि हाँ मेहनत करते हैं, बट इट्स वेरी गुड टू बी हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टू डू माचिस का पैकेट also. If you can just mute your mics, please, it will be great. तो अगेन जस्ट टू एलैबोरेट फर्दर, देखा गया है कि एक कंपनी के 20% कस्टमर्स कंपनी की 80% प्रॉफिट्स देते हैं। या इवन सॉफ्टवेयर में भी जो बग्स होते हैं वो 20% ऑफ कोड से आते हैं, कुछ एक आधे कोड होते हैं जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के बग सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। सिमिलर मैनेजमेंट में कहा गया है कि कैन वी म्यूट आवर माइक्स प्लीज? चिरंजी दे तो पूजा की, या तो पूजा की चिरंजी सत्य का 20 रुपए का आता है ना, 10 में अश्विनी कैन वी म्यूट आवर माइक्स प्लीज? पैकेट भी आता है ना 1 रुपए का। ओके ग्रेट। तो इवन टाइम मैनेजमेंट में भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी निकलेगी वो तभी निकलेगी जब आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करेंगे। 80% ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो 20% ऑफ टास्क से आती है। और इकोनॉमिक्स में भी देखा गया है कि एक कंट्री में ना केवल लैंड, लेकिन 80% ऑफ वेल्थ इज ओन्ड बाय 20% ऑफ पॉपुलेशन। तो मैं ये सब क्यों कह रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास कितने क्लाइंट्स होंगे? 100 क्लाइंट्स होंगे, 500 क्लाइंट्स होंगे, 1000 क्लाइंट्स होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लाइंट्स यू ऑल आर मैनेजिंग? कैन यू गिव दैट नंबर अप्रोक्सीमेट? इट कैन बी 10 ऑल्सो, ये 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, राइट? तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ऋतिक जी कह रहे हैं मैं 425 क्लाइंट्स संभालता हूँ। राहुल जी कह रहे हैं मैं 300 क्लाइंट्स संभालता हूँ। उल्लास जी कह रहे हैं मैं सिर्फ 2 क्लाइंट्स को संभालता हूँ। वेरी गुड। गणेश जी कह रहे हैं कि आई एम हैंडलिंग 800 क्लाइंट्स। 800 क्लाइंट्स की अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स है, क्या सभी क्लाइंट्स HNI है, या उसमें से कुछ रिटेल है, कुछ SIPs आपको देते हैं 500 रुपए का, 1000 रुपए का, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स है जो आपको 5 करोड़ का भी चेक देते हैं? व्हाट इज योर मिक्स ऑफ योर क्लाइंट?
सो व्हाट इज दैट मिक्स ऑफ योर क्लाइंट? अगर आपके पास 100 क्लाइंट्स है, उसमें से कितने HNIs है, कितने ऐसे रिटायरीज है जो रिटायर या तो रिटायर्ड हो गए या रिटायरमेंट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, या तो HNI है? क्या लगता है? तो गणेश जी कहते मेरे पास मिक्स क्लाइंट्स है। तो देखिए, आपके पास 2 क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, 200 क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, 2000 क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। और ये जो क्लाइंट्स है अपने जीवन के कोई एक लाइफ साइकिल पे होंगे, लाइफ साइकिल स्टेज पे होंगे, या तो वो यंगस्टर्स होंगे या मिडिल एज्ड होंगे या रिटायरीज होंगे। इनकी इनकम लेवल जो है वो भी डिफर कर सकती है। कोई यंग अर्नर्स होंगे, कोई काफी वेल्दी होंगे, किसी ने काफी एक्यूमुलेट किया होगा, अभी वो रिटायर होने वाले हैं। इट इज गुड कि आपके पास बहुत क्लाइंट्स है और काफी अच्छी उनकी मिक्स है, लेकिन आपको अपना एफर्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आप हर 100 क्लाइंट या 2000 क्लाइंट या 800 क्लाइंट या 400 क्लाइंट या इन्वेस्टर को एवरी डे नहीं मिल सकते हैं। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस क्लाइंट के ऊपर कितना फोकस दे, किस क्लाइंट को हम कितना सर्विस दे, किस क्लाइंट को हम कितना अटेंशन दे। और ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आप बर्नआउट ना हो, यू फील प्रोडक्टिव, यू फील हैप्पी, और इसका आपके बिजनेस पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, विच इज कॉल्ड मैक्सिमम बैंग फॉर बक्स। सो इस प्रोग्राम का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या है कि आपको हार्डवर्क तो हम करते ही करते हैं, विच इज 100% ऑफ योर एफर्ट, 500% ऑफ योर एफर्ट विल गिव यू 100% रिजल्ट। लेकिन 80-20 कहता है कि आप अपने क्लाइंट्स को प्रायोरिटाइज करिए, उनको कैटेगराइज करिए एज कैट ए, कैट बी, कैट सी, या प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, ब्रॉन्ज वगैरह वगैरह, एंड डिफरेंशिएटेड सर्विस दीजिए। कुछ इन्वेस्टर्स को ज्यादा हमें मीट करना होगा, फ्रीक्वेंटली मीट करना होगा, कुछ इन्वेस्टर्स को हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हो या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो, नए क्लाइंट्स हो, नए इन्वेस्टर्स हो, कि वर्क स्मार्ट। एंड वर्क स्मार्ट मतलब यूजिंग दी परेटो प्रिंसिपल, विच इज 80-20 प्रिंसिपल। दूसरी चीज है कि हम लोग जो होते हैं बहुत बार व्हाट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, कि हमने ये किया, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हम इतने सारे क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, हमारे पास फलाने फलाने प्रोडक्ट्स हैं, हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन पर्पस के ऊपर हम बहुत कम फोकस करते हैं। आपका वाई क्यों है, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? एक हो सकता है कि नहीं मुझे पैसा बनाना है, नहीं मुझे अच्छा लगता है, आई एम पैशनेट, पर पैशन के बियॉन्ड एक पर्पस होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। तो वो होता है वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेड टॉक भी देख सकते हैं गूगल सर्च करके या यूट्यूब सर्च करके, बाय अ जेंटलमैन कॉल्ड साइमन सिनेक, और ये गोल्डन सर्कल थ्योरी के बारे में बहुत कहते हैं। और मैं भी विश्वास करती हूँ कि अगर आपका एक विजन है ना, अगर आपका एक पर्पस है ना लाइफ में, अगर आपने अपना वाई को ढूंढ लिया ना, आपको क्लाइंट्स हमेशा मिलेंगे, हमेशा इन्वेस्टर्स मिलेंगे। आप सेल्स में कभी निराशा तो होती है, इनफैक्ट सेल्स इज अ सम टोटल ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, सक्सेस एंड फेलियर, लेकिन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो आपको ट्रस्ट करते हो। तो वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है इफ यू वांट टू सेल इफेक्टिवली। अभी सेल्स जो होती है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि आपने पहली बार इन्वेस्टर को मिला और आपको 500 करोड़ का या 5 करोड़ का या 50 लाख का चेक मिल गया। सेल्स एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो एक कहावत है गोल्फ में कि द मोर आई प्रैक्टिस द लकियर आई बिकम, तो सेल्स में भी वही है। तो सेल्स में एक प्रोसेस है, आपको मीट करना होगा, रेगुलरली मीट करना होगा, बट यू हैव टू वर्क स्मार्ट। और उसमें जो टेक्निक्स होती है वो ये मेरे ख्याल से ये 4-5 टेक्निक्स होती है, विच इज एस्टैब्लिशिंग रैपो, आस्किंग गुड क्वेश्चंस, गिविंग इनसाइट, और फैबिंग टेक्निक। ये फैबिंग क्या है, 3 मैजिकल वर्ड्स क्या है, हम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सेल्स इज ऐसा एक फील्ड है जहां पे ऑब्जेक्शंस नहीं आए, तो हमने अपने गांधारी के जैसे हमने अपने आंखों में पट्टी बांध दी है, क्योंकि सेल्स में ऑब्जेक्शंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्शंस को कैसे डील किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपने सब कुछ किया लेकिन आप बिजनेस ही नहीं मांग रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं मांग रहे हो, तो आस्किंग फॉर बिजनेस, आस्किंग फॉर मनी को सेल्स क्लोजर कहते हैं। क्लोजर के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। मैं 3 टेक्निक्स के बारे में बात कर रही हूँ, आप एक भी यूज कर दे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि लाइफ में चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेल्स हो,
उसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है। एक आध हम कभी लक, इवन फंड मैनेजमेंट में भी आप किसी भी फंड मैनेजर को पूछो, वो कहेगा कि मैं आई कैन ओनली कंट्रोल माई स्किल्स। तो स्किल जो है उसको बरकरार रखने के लिए हमें एक डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करने की, अपनाने की बहुत जरूरत है। और क्या होता है रैस, इन दी एंड हम देखेंगे रस नहीं होता है, रस भी कह सकते हो आप उसे, रैस भी कह सकते हो। तो सेल्स का क्या रस होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये ब्रॉड है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम की आइडिया कैसे आई? ऑब्वियसली काफी बुक्स, जैसे अल्टीमेट सेल्स मशीन की किताब मैंने पढ़ी, फिर चैलेंजर सेल्स की मैंने किताब पढ़ी, फिर स्टार्ट विद वाई साइमन सिनेक सिनेक का भी कुछ मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। तो ये तीन चार, एक इंटेग्रिटी सेलिंग है उसकी भी किताब अच्छी लगी, और मल्टीपल ब्लॉग्स, क्योंकि आप पढ़ते रहो कि कभी कभार किताबों में भी एक दो चैप्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी जो किताब होता है उसमें वही चीज रिपीटेटिव होती है। तो एक तो है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ें, और उसके बाद योर ओन एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम। तो सबसे बात होती है कि चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग ड्रीम क्लाइंट हो, और ड्रीम क्लाइंट किसको कहते हैं? वी हैव टू वर्क स्मार्ट। एंड व्हाट, हु इज योर ड्रीम क्लाइंट? जैसे हमारे पास कहते हैं ना, गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्रों में सबसे जो उच्च स्तर का मंत्र होता है वो गायत्री मंत्र होता है। वैसे ही जो आपका ड्रीम क्लाइंट है उसका गायत्री मंत्र कौन क्या है? मतलब ड्रीम क्लाइंट मतलब वो ऐसा क्लाइंट जो आप बहुत खुश होते हो उससे। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस, या जब भी आप एक नए इन्वेस्टर को मीट कर रहे हैं, क्लाइंट को मीट कर रहे हैं, ये जो गायत्री मंत्र है या गुरु मंत्र है उसको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो बेस्ट क्लाइंट है, योर बेस्ट क्लाइंट शुड रेस्पॉन्ड फास्टर, शुड इन्वेस्ट फास्टर, शुड इन्वेस्ट मोर, शुड इन्वेस्ट फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1000 क्लाइंट्स है, आप देखिए कि उसमें से आपके बेस्ट क्लाइंट्स क्या है। सबसे पहले he'll pick up the call or she'll pick up the call, और इट कुड बी कि वो जल्दी कन्वर्ट कर देते। मे बी आपको ड्रीम चेक ना दे, लेकिन आप 1 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको 1 लाख मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख जल्दी मिल रहा है। वो फिर उसके बाद हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले, लेकिन जब भी वो इन्वेस्ट करे वो ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करे, और हो सकता है कि वो रेगुलरली इन्वेस्ट करे। तो इट इज नॉट एंड इट इज और, इट इज इंग्लिश वाला और, नॉट हिंदी वाला AUR। इट मीन्स दैट जो आपका बेस्ट क्लाइंट है वो आपका कैटेगरी A क्लाइंट हुआ, वो आपका प्लैटिनम लेवल का क्लाइंट हुआ, वो आपका उच्च स्तरीय क्लाइंट हुआ। एंड वो क्लाइंट होता है जो आपका फोन जल्दी पिकअप करता है, आपको अपॉइंटमेंट देता है। वो भी एक क्राइटेरिया हो, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ या तो वो आपको धंधा बिजनेस फास्टर दे, या तो वो फ्रीक्वेंटली दे, या तो वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे। और कोई भी क्लाइंट इस कैटेगरी में फिट होता है, केवल रिस्पॉन्स से नहीं होता है। या तो वो इन्वेस्ट करे जल्दी, छोटा भी अमाउंट हो, या तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करे, या तो वो इन्वेस्ट फ्रीक्वेंटली करे। और इन क्लाइंट्स को हम एक बड़ा भी चेकलिस्ट बना सकते हैं कि नॉट ऑल टॉक्स, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहा है, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगता है उनको मिलना, लेकिन अच्छा लगता है के अलावा इट शुड गिव यू बिजनेस ऑल्सो। रिपीटेडली इन्वेस्ट कर रहा है, जल्दी इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है, केवल लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, वो इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है, इजी टू सेल। ये आप इस चेकलिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और इससे और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जो लगा वो ये है कि मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया, रिस्पॉन्स फास्टर और इन्वेस्ट मोर, और इन्वेस्ट फास्टर और इन्वेस्ट फ्रीक्वेंटली। अगर आपके पास कुछ और आइडियाज है, आपके पास चैट बॉक्स दिया गया है, आप उस चैट बॉक्स में यू कैन यूज द चैट बॉक्स एंड गिव योर आंसर। Is it fine? You can use the chat box and give the answer. So anything else? Who qualifies as your dream client? So please use it and give your answer. But मेरे ख्याल से कि if you're keeping a filtration technique, yeah, this is a person who is profitable for me or is investing quickly with me,
or investing more with me, or investing frequently with me, opens the door of my house, gives me appointment, but also gives me some business. So this is your Cat A client or your dream client. And you have to have a technique. Is investor ko I'll meet once in a month. I'm also going to call him once in 15 days. So ये आपका Cat A client हुआ. दूसरा जो बाकी क्लाइंट्स होगा जिसमें आपको कभी वंस इन 1 ईयर मिल जाएगा कुछ छोटा सा अमाउंट, वो आपके कैट बी या कैट सी क्लाइंट्स हुए. तो सबसे पहले सेग्रीगेट करिए अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को, और ये फॉर्मूला आप फ्रेश क्लाइंट्स एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए भी लागू कर सकते हैं. तो आप अपने, मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी कि हाउ डू यू यूजुअली फाइंड योर ड्रीम इन्वेस्टर्स? हाउ डू यू फाइंड देम? Do you find them through your mobile phone or your wallet or your visiting card, or your if you're using a CRM tool like Zoho hai yahan, lot of people use Salesforce, Talisma, or you ask for referrals. So which is your way to get your dream buyers, prospective buyers and dream investors? Is this fine? This kind of a mix of English and Hindi? I hope this is fine. Yeah, because we've got. Yeah. Okay. So how do you find your mix of buyers and investors? आप कैसे अपने buyers and investors जो prospective है उसको ढूंढते हैं? क्या वो option 1 है? Is it option 1 or is it 2 or is it 3 or 4? Can you provide details about Zoho and some? तो see, Zoho, you just visit the website, sir. वहां पे क्या होता है कि you can log in. वो आपका एक डिजिटल डायरी होता है. डायरी में आप लिखते हैं ना कि इस दिन इस क्लाइंट को we met and this was the discussion. Instead of keeping as a diary, you have a ecosystem where you can actually put ki, okay, day 1 I met this investor. This is his birthday. This is his wedding anniversary day. This is his address. Everything is like a digital directory for you. And it gives you notification also that ki, okay, this is the day when your client's birthday is there. And some CRM platforms, which is customer relationship platforms, also helps you send greeting cards through the system itself. System will tell you aaj iska birthday hai, and you can send a greeting card from that itself. So I would say ki I'm getting a lot of responses. I would say everything. So a lot of people say कि मेरा खुद का मोबाइल फोन में इतने कॉन्टैक्ट्स है जिसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है. Let me start, sending them a nice Happy New Year message. Let me reinvigorate the relationship. If they are on Facebook, let me follow them on Facebook. आपका खुद का वॉलेट या जो वॉलेट में आपने ऐसे बिजनेस कार्ड्स रखे होंगे जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है, उनके साथ अच्छा डिस्कशन हुआ है, बट समवेयर और द अदर you forgot to meet them. And if you are creating a CRM, means customer relationship management, which is a digital diary, उसमें भी आपको ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे जिसको आप रीइग्नाइट कर सकते हैं. And referrals also. I think everything works. These are the ways to acquire clients. आपके खुद के सोशल मीडिया फॉलोअर्स होंगे कि जरूरी नहीं है कि हम ही लोगों को फॉलो करें. हो सकता है बहुत लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और बहुत लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, दोज आर ऑल्सो आर आर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. And always today is the age of social media. I think we can't stay away from it. A lot of deals that I have been able to forge is because of LinkedIn as a platform. तो वो भी आप देख सकते हैं, because LinkedIn is a very underrated. यहाँ पे आपको 30,000 followers, you can get it, and not many people know this is a wonderful website. So which is called recruitmentgeek.com. So let me share that on the chat box. So what is recruitmentgeek.com? So let me first enter Google and enter LinkedIn and show it to you. Yeah. तो देखिए, ओके, तो
तो देखिए लिंक्डइन में एक सर्च होता है, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं HR मैनेजर इन नागपुर, HR मैनेजर इन नागपुर, मुझे काफी सारे HR मैनेजर्स मिल जाएंगे। हर ये जो नेम्स है आपका, they are all your potential clients. All you have to do is connect with them. Maybe एक customized note कि I liked your profile. आपने ये पोस्ट लिखा मुझे अच्छा लगा. I just want to connect with you. That's all. तो एक कनेक्शन मिल गया. जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप उन्हें बोले कि गिव मी बिजनेस. जस्ट लाइक देयर सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट कर रहे हैं लिंक्डइन में, उसको लाइक करिए, उसे कमेंट करिए, उनके साथ एक डिजिटल रपो बनाइए. उसके बाद ये कन्वर्ट हो सकता है. कभी कभी फर्स्ट कांटेक्ट मतलब आपके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स है. सेकंड मतलब ये आपके कांटेक्ट है. थर्ड मतलब आपके कांटेक्ट है. तो लॉट मेनी पीपल नो कि लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन. इसमें आपको कितने सारे, आपको मार्केटिंग मैनेजर लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो. लेकिन कभी कभार लिंक्डइन इज क्वाइट क्लेवर. इट मे नो दैट यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म टू हंट फॉर क्लाइंट्स. So in that case, I suggested Recruitment Geek. ये भी बहुत अच्छा है. You want to know who are the vice presidents. Say for example, vice president, ऐसे लोग जिनका designation is vice president in marketing, assume, और IT in नागपुर. तो जब लिंक्डइन का सर्च कभी कभार काम नहीं करता है, क्योंकि लिंक्डइन काफी चालाक है, उसको पता चल जाता है कि आप उसको यूज कर रहे हैं टू अक्वायर क्लाइंट्स. तो एक ऑल्टरनेटिव भी मैं बता रही हूँ जिसका नाम है recruitmentgeek.com. यहाँ पे देखिए, क्या आपको पता है कि नागपुर के अंदर यू विल फाइंड सो मेनी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन टू दिस एंड कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन. ये देखिए डायरेक्टली लिंक्डइन को जाता है और इसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. और इनके इंफॉर्मेशन के थ्रू आप इन्हें एक कनेक्ट तो बहुत ही सिंपल है. मतलब यहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं. पहले फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं कि आई लाइक योर प्रोफाइल, काफी इंप्रेसिव है, मैं सिर्फ आपसे एक कनेक्शन बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कहीं से भी अपने इन्वेस्टर को खोज के निकाल रहे हैं, लेकिन वो एक द मंत्रा विच इज देयर, categorize your clients, because it is when you categorize, you're conserving your energy, you are becoming more productive. So step 1 था कि working smarter using 80-20 Pareto principle. दूसरा है कि assume आपको एक इन्वेस्टर पूछता है, by the way, Deepak, tell me about what you do. Tell me about your company. आप क्या करते हैं? I would request कि if we can keep questions in the end. I'll take all your questions, but let's go step by step and understand what is. ये बहुत important part है कि अगर आपसे कोई इन्वेस्टर पूछता है, ठीक है, ये लेडी जो HR मैनेजर है, she is asking you, Deepak, what do you do? Tell me about your company. And जो standard response people give is ये वाला response people give कि I am a VP sales. Yeah, just give me a moment. I'll reshare my screen once again. Just 1 second, please. Yeah. Ma'am, I have one question, ma'am. Can I? I would love to take your question. Only thing, if we can just park it in the end with your permission, because then we'll finish No, what we it's have to say. related to marketing, ma'am. I am doing right now job in Jain Diamond Tools. It's the job, the time is 9 to 5:30, and I also I am doing job just for 1 year. My target for job is to do is 1 year. Okay. So meanwhile, I just want to do marketing for this stuff also, and sustain in this market also. So what can I do to survive in this market, ma'am, in mutual देखिए, fund industry? see, I think go slow. That is what, क्योंकि आपका खुद का you have a full-time job. You have to be very sincere to that job also. Correct? So and 5:30 के बाद, if you honestly ask me, every client is trying to reach back home. I presume if you're in Nagpur, the traffic is lesser. In any bada city, they are wasting 2 hours of their time on road itself.
I'm at So Rajkot, ma'am. okay. So even you are in Rajkot, I would suggest कि you can keep your weekends for prospecting. लेकिन your weekdays में maybe at 8 o'clock, 9 o'clock, whoever, कुछ तो clients होंगे आपके पास, आप मोबाइल फोन से ढूंढिए उनको, उनको आप एक लर्निंग कम्युनिटी बना सकते हैं, या ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप के फीचर्स होते हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट हो गया या लर्निंग कम्युनिटी हो गया, आप उसके थ्रू इंफॉर्मेटिव आर्टिकल शेयर करिए। पहले आपको ट्रस्ट इतना होगा, क्योंकि दिस इज अ फील्ड ऑफ ट्रस्ट। कुछ भी प्रोडक्ट होता है वो ट्रस्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मॉर्निंग में 8 to 9 लोग अपना लिंक्डइन जरूर देखते हैं, या लोग अपना व्हाट्सएप खोल के जरूर मैसेजेस को पढ़ते हैं। उस टाइम पे कुछ इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स भेजिए आप। और जब भी आप घर वापस जाते हैं, कंसिडरिंग कि राजकोट में उतना ट्रैफिक नहीं होगा, यू ट्राई फॉर अपॉइंटमेंट्स, राइट, कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि एक हफ्ते में लेट मी मीट एटलीस्ट 10 पीपल। यूजुअली जो फुल टाइम होते हैं वो एक दिन में 3 लोगों को मिलते हैं, या एक हफ्ते में 25 लोगों को मिलते हैं। बट आई एम गिविंग अ 50% ऑफ टारगेट कि यू हैव टू मेक अ टारगेट, यू हैव टू मीट 10 पीपल। आई हैव टू रेगुलरली सेंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स व्हाट्सएप के थ्रू, या सोशल मीडिया में जो मैं जिस क्लाइंट को मैं चाहता हूँ कि कन्वर्ट हो जाए उनको मैं रेगुलरली फॉलो करूँ। करेक्ट। वो आप कर सकते हैं। आई थिंक वीकेंड्स आपका बेस्ट टाइम है टू यूटिलाइज। आप देखिए, अगर आपके पास कोई क्लब मेंबरशिप मिल सकता है आपको, या आप किसी एसोसिएशन के मेंबर हो सकते हैं, तो उस क्लब और उस एसोसिएशन के द्वारा भी आप अप्रोच करके कुछ इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस भी कर सकते हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड क्या होता है इन सिंपल लैंग्वेज आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से you can utilize your Saturdays and Sundays, or if you have associations, clubs that give you the opportunity to do a presentation over dinner or high tea or whatever, you should utilize that. Okay, I hope that answers your query, sir. Yes, yes. This finds me well, ma'am, for as an answer, ma'am. Thank you. And I'll just request ki, sir, if you all can put your questions in the end, because one is that we have a certain sequence of topics to be covered, and we can cover there and definitely take your questions. Now, coming to this, कि अगर आपको एक investor पूछ रहा है कि आप बताइए आप क्या करते हैं, मोस्टली पीपल से कि मैं एक इन्वेस्टमेंट काउंसलर हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, रिलेशनशिप मैनेजर, अपने डेजिग्नेशंस को कोट करते हैं। अगर मैं सुंदरम को बिलोंग करती हूँ तो मैं बोलूंगी कि सुंदरम इज पार्ट ऑफ सुंदरम फाइनेंस, इसके पास बहुत $8 बिलियन ऑफ पैसा है, 80 ब्रांचेस है, 30 लाख इन्वेस्टर्स है, हमारे पास बड़ा सा टीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन्वेस्टर्स फेस इज ओ माय गॉड सो बोरिंग। तो please understand there are 1 lakh plus रजिस्टर्ड ARN होल्डर्स इंडिया में, 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड ARN है। बहुत सारी बैंक्स, बहुत सारे कंपनीज म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहते हैं। एडेड टू दैट यू हैव ग्रो, जीरोधा एंड सो मेनी कंपनीज। तो इट इज नॉट व्हाट कि आपका ये डेजिग्नेशन है, आप ये एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। साइमन सिनेक की एक थ्योरी है, गोल्डन सर्कल थ्योरी। मैं इनफैक्ट चैट बॉक्स में लिख लेती हूँ इस थ्योरी के बारे में। गोल्डन सर्कल थ्योरी ये कहती है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू सेल, पीपल बाय व्हाई यू ऑफर व्हाट यू ऑफर। व्हाई, आपका पर्पस क्या है? व्हाई डू यू गेट अप फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग? हम आराम से सो सकते हैं ना हमेशा 24 आवर्स, आप बेड से निकलते क्यों है? क्योंकि आपका एक पर्पस है लाइफ में, आपका एम्बिशन होगा, आपका एस्पिरेशन होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम लाइफ में करते, इट इज बियॉन्ड एम्बिशन, बियॉन्ड एस्पिरेशन, जिसको कहते हैं आपका व्हाई। आपने इस बिजनेस को क्यों अपनाया, आपने इस प्रोफेशन को क्यों अपनाया? अगर आप एप्पल का वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट देखेंगे, और लोग एप्पल के फोन्स के पीछे दीवाने हैं वो। एंड एक आर्टिकल निकला था लिंक्डइन में कि वही उबर का अगर आप कैब बुक कर रहे हैं, the price of the for the same route, वही रूट है कि आप पॉइंट X से पॉइंट Y तक ट्रैवल कर रहे हैं, वही रूट है, आप वही है उबर, लेकिन आपका फोन के हिसाब से प्राइस चेंज होगा।
इनफैक्ट उबर जो पैसा चार्ज करती है एप्पल फोन यूजर्स के लिए, उसका जो फेयर होता है, उसका जो फीस होता है, इट इज हायर देन द फीस ऑफ व्हाट उबर चार्जेस फॉर द सेम रूट टू अ कस्टमर हु इज यूजिंग एन एंड्रॉइड फोन. नाउ व्हाई एम आई गिविंग दिस कि एप्पल एक्सपेंसिव है, फिर भी लोग उसके पीछे भागते हैं. एंड द रीजन इज दैट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग आईफोन बनाते हैं, we are manufacturing iPads, we are manufacturing iPhones, we are manufacturing iPods, हमारे we have Apple TV, etc. If you see their why statement, कहीं भी आपको उनका प्रोडक्ट नजर में आ रहा है? वो ये कह रहे हैं आपको कि we believe in challenging the status quo, we believe in doing things differently, and आर पर्पस इज कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो यूजर फ्रेंडली हो, जिसकी डिजाइन इज ब्यूटिफुल, दे आर यूजर फ्रेंडली, सिंपल टू यूज. वी जस्ट हैपन टू मेक ग्रेट कंप्यूटर्स वन बाय वन. Tomorrow Apple comes out with a restaurant also, they'll do well because they say we believe in doing something which is unique, which is challenging the status quo. And इसी प्रकार what is your value statement? तो if you see Imperial Money, इंपीरियल मनी के जो वॉट है वो है टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, एस्टेट प्लानिंग, एनआरआई सर्विसेज. इंपीरियल मनी कैसा करता है इन चीजों को डिस्प्ले करने के लिए, रेकमेंड करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को, इज थ्रू योर मनी पोर्टफोलियोज, मैक्सिमा बिल्डर, एमएफ टूल्स, ब्लॉग्स, रिसर्च. फिर भी इन्वेस्टर विल नॉट गेट कन्विंस्ड बिकॉज यू आर लिविंग इन अ कमोडिटाइज्ड वर्ल्ड. आज म्यूचुअल फंड is being offered by 44 AMCs, is offered by lakhs and lakhs of advisors. What is the why? क्या आपने कभी भी Imperial Money का why देखा है? So before I was researching and creating this presentation and customizing it for Imperial Money, I did visit the website and उसमें लिखा गया है, our work is to serve you with the best possible guidance and help you make smart investment choices with your money to get optimum returns. So अगर मुझसे, मैं अगर इंपीरियल मनी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कहने वाला, अगर मुझे कोई इन्वेस्टर पूछेगा आप करती क्या हो, तो मैं कहूंगी कि यस, आई एम एन एमएफडी, बट माय वर्क इज टू सर्व यू विद बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, help you make smart investment choices so that you make optimum returns. अभी उसके लिए मैं पीएमएस का रूट अपना रही हूँ या एआईएफ का रूट अपना रही हूँ या म्यूचुअल फंड का रूट अपना रही हूँ, वो अलग चीज है. लेकिन मेरा क्या काम है? ऐसा गाइडेंस देना, ऐसे स्मार्ट चॉइसेस देना कि आपका वेल्थ क्रिएशन जो है वो बने और ऑप्टिमल रिटर्न्स के साथ बने. ये है इंपीरियल मनी का वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट. तो हम कहते हैं हम म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, ये दैट इज नॉट व्हाट यू शुड बी सेइंग, राइट? इंस्टेड यू शुड बी सेइंग कि मैं एक ऐसा साधन, आई एम लुकिंग एट अ वे वेयर I help you achieve your future aspirations. I help you save money for rainy days. I help you save money for emergency. Instead of saying कि मैं financial advice करता हूँ, you must say I create a plan. I develop plans so that people can get wealthy over time. I give means so that people can save for rainy days, can fulfill their achievements. And जैसे Imperial Money का था, I give guidance, right? So instead of saying कि हम इंश्योरेंस बेचते हैं, you may Vrita, you've gone on mute. Yeah. So I give plans so that, can you hear me now? I give plans so that I give strategies Clearly. so that you can plan for your plan for any life uncertainty. I give plans so that even in your golden years you get some income. तो pension plan advice. तो please, this is your product. Product के पीछे आपका एक मोटिव क्या है, एक उद्देश्य क्या है, एक हायर पर्पस क्या है? That is very very important, correct? तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर, you are seeing Sachin Tendulkar in a lift or MS Dhoni in a lift, and they ask you, oh wow, nice, what do you do? So you can say ki, well, I am a mutual fund distributor, but my investors look at me as a socially responsible financial advisor. I am an MFD, but people look at me as a socially responsible financial advisor.
then please state your why. My why is ki our work at Imperial Money. I work with Imperial Money. I'm associated. 500 crore company, 600 advisors associated with it. हमारा काम है कि to give you the best possible guidance, help you with smart choices so that you get optimal returns. अब उसके लिए आप म्यूचुअल फंड का रूट अपनाएं, एफडी का रूट अपनाएं, बॉन्ड का रूट अपनाएं, दैट इज सेकेंडरी. प्रोडक्ट्स आर सेकेंडरी. योर व्हाई इज वेरी वेरी पैरामाउंट. हम क्या करते हैं, व्हाट के ऊपर डिस्कस करते हैं, व्हाई के ऊपर डिस्कस करना चाहिए. एंड देन यू शुड एक्सपेंड एंड सेव. द वे वी डू इट इज दैट हम लोग अपने क्लाइंट्स को आत्मनिर्भर बनाते हैं. आत्मनिर्भर सिर्फ कोविड वाला कैंपेन नहीं था. आत्मनिर्भर इज दैट वी इक्विप क्लाइंट्स विद प्रॉपर नॉलेज, टूल्स, financial products, etc. The way we do it is through customized Imperial Money portfolios, which is driven by research, risk profiling, goal-based solution, etc., etc. And by the way, to achieve whatever that guidance and smart investment choices, to achieve that, we have suitable products, right from mutual fund, insurance, estate planning, NRI services. Do you think this creates impact? अगर मुझसे कोई पूछे आप करते क्या, मैं बोलूंगी कि मैं मेरा नाम अमृता है, मैं MFD हूँ, मैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एस्टेट प्लानिंग, NRI सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ. दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट. स्क्रिप्ट 2 इज कि आई एम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, पर मेरे इन्वेस्टर्स मुझे एक सोशली रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे दिखते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है, माय वर्क is that we believe कि I should give proper guidance. I should give smart investment choices that can create optimal returns. The way I do it is through, equipping my investors through proper knowledge and proper knowledge about financial products and tools, and giving customized portfolios, which we call it as Imperial Money portfolios. And how we do it, or what we do to achieve that, is through mutual fund, insurance, estate planning, NRI service. You're just reversing the order. Which sounds more impressive? Not when you start with what, when you start with why. Is why को आप further भी expand कर सकते हो, and I have taken it from your website, in fact. And let me share the link. Please visit Imperial Money का website. There are so many interesting things being given here. Let me type it here and post it to you all. तो आप अपने why को further expand कर सकते हैं. और कैसे करेंगे कि देखिए, why, what is our why is to give proper guidance, is to give smart choices for optimum returns. ये आपका why number 1 है. आप उस why को कैसे, और why is your why. So if my why is smart money guidance and smart money choices, smart investment choices, the reason is safety of my clients is top priority. And that is why I invest across schemes, and we take a value approach. There is appropriate risk management. So your why, this is actually the safety of my clients is another why. And rest all what I can see is the how. So are you getting my point? Always have your why. Your why is I develop plans so that people can become financially independent over time. I develop strategies for my investors so that they can save money for rainy days, right? For Imperial Money, your why, which, correct me if I'm wrong, Deep sir, I feel your why is our work is to serve you with the best possible options. Right, ma'am. And help you make smart investment choices. And that's where you catch the attention. That shows your higher purpose. उस पर्पस को अचीव करने के लिए, अगर आपका हायर पर्पस है निर्वाणा, उसके लिए आप भक्ति का मार्ग अपना सकते हैं, तंत्र का मार्ग अपना सकते हैं, मंत्र का मार्ग अपना सकते हैं, आप कोई भी मार्ग अपना सकते हैं. ये आपका हायर विजन है. उसके लिए आप इंपीरियल मनी पोर्टफोलियोज देते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स देते हैं, वो सेकेंडरी है. आपका विजन होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट ऑल visionaries do. मार्टिन लूथर किंग का जो था स्पीच था, वो था आई हैव अ ड्रीम कि यूएस में रेसिज्म खत्म हो जाए, एवरीबडी हैज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पास एक प्लान है, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम.
तो हर कोई जो होता है, they are not looking at alpha beta trainer, they are first looking at your purpose, which is your why statement, which is your value proposition statement. अर्पिता मैम, I hope this is clear to everyone. yes, Arpita ma'am, just sorry to Amrita, Amrita ma'am, sorry. yeah. I'm sorry to interrupt you. So Yeah. I have a dream that one day my Hmm. every single partner will going to earn more than 1 lakh rupees a month. That's what actually I have a vision. I have a dream and I'm working tirelessly for every single of my partner. मैं हर एक मेरे पार्टनर के लिए tirelessly काम करना चाहता हूँ जो ये चाहता है कि मुझे मिनिमम 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड से या इंपीरियल मनी से आए. That's what the dream which I have. ये मेरा ड्रीम है. Yes. So very good dream, sir. ये आप this is what इंडिया को आजादी भी तो वैसे ही मिली है, right? इंडिया is a country of countries, correct? Really. महाराष्ट्र भी एक कंट्री है, ओडिशा भी एक कंट्री है, तमिलनाडु भी एक कंट्री है. Seriously. कैसे एक बड़े से कंट्री को कंट्री ऑफ कंट्रीज, इट्स अ कॉन्टिनेंट. Seriously. क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स का एक ड्रीम था, राइट? सत्यमेव जयते, राइट? तो इट इज दैट ड्रीम, वो आपको कल लेके आना चाहिए, राइट? सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या है, उनके पास ना लिमिटलेस टाइम था कि चलो ठीक है 5 साल में नहीं हुआ 10 साल में कर लेंगे, 10 साल में नहीं हुआ 25 साल में कर लेंगे. तो 1857 से लेके तो वो लोग 1947 तक, मतलब 90 साल उन लोगों ने फाइट करी फ्रीडम के लिए, तब जाके 90 साल में मिला. हमारे पास तो इंडियन इकोनॉमी में 10 ही साल है, जहां पे हम सबके पास वो लिमिटेड टाइम है कि इतने टाइम में करना है, और जिंदगी भी लिमिटेड है, तो इतने टाइम में ही करना है. या प्लीज, ओवर टू यू. राइट, आई एग्री. करना है 200 साल का हमारा संघर्ष नहीं है, राइट? आपके पास 10 साल ही आपको वो एक, जैसे मैंने कहा कि एक कैटेगराइज करिए 80-20 के परेटो के प्रिंसिपल के ऊपर. दूसरा है कि जब भी आपको कोई क्लाइंट पूछे, क्योंकि हाउ डू यू सेल इफेक्टिवली, फॉर दैट डोंट जंप टू प्रोडक्ट्स. से my dream is कि every client should be आत्मनिर्भर. Every client should be financially independent, and I believe in giving smart guidance and smart investment choices. तो ये आपका why है, जो imperial money का why है, उसी को कोट करिए. उसके बाद build it up. The next step is build it up. Build it up में आएगा कि imperial money के portfolios, products, research, blogs, calculators, everything. So what we discussed is 80-20. What we discussed is value proposition. Very important if you are anybody, be it an employed person or an entrepreneur. Abhi, how do you sell effectively? Uske kya key steps hote hain? Let me ask you a question here. How do you best describe the role of an advisor, एक mutual fund distributor और advisor का role को आप कैसे describe करेंगे? Is it that your job is to convince someone to buy a product? Is it that your job is to turn a no into a yes? Or is it your job is to uncover a problem and provide a solution? What is the job of a mutual fund distributor? So Peter is saying it is 3. Santosh is saying it is 3. Pearl Vishfin is also saying 3. Rohit is also saying option number 3. Well, I appreciate all the responses that I have received. I would say everything. But most importantly, it is every client has some problem. They need guidance. It could be that, they have money, but they don't know how to channelize it in the right way. They are reckless spenders. It could be that, they have taken a lot of loans, unnecessary loans. You can help it streamline. It could be that they're not aware that there are various categories of mutual fund schemes, much better investment avenue via mutual fund. They are unaware, lack of awareness, money management, lot of issues can be there. So that's why everything is what is an advisor should do, convert business, but most importantly, uncover a solution. एकदम खतरनाक है. अच्छा, मी म्हणतो सिस्टम सुरू झाला का NSE एकदा चेक कराल का? Can we just mute our mics, please? It will be great. Now, so what is the 2 things I believe? जब भी आप सेल्स के ऊपर किताबें पढ़ेंगे, जिसमें काफी अच्छी इंसाइट्स होती है, वो कंसल्टेटिव सेलिंग के बारे में बात करते हैं. लेकिन मेरा जो यहाँ पे आपको एक
पर्सपेक्टिव बताना है वो है ब्लेंड ऑफ कंसल्टेटिव सेलिंग एंड चैलेंजर सेलिंग। उसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन एज आई एम टेलिंग इट, एज आई प्रोसीड। सबसे पहले, nobody likes dealing with a person who is having a serious face or a grumpy face, or might be a nice person but seems to be arrogant because that person does not smile, is always business oriented। तो हमें पहले अपने इन्वेस्टर के साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रपो बिल्ड करना है, करेक्ट। जब भी हमारा दांत को उखाड़ा जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद ही दांत को उखाड़ा जाएगा या रूट कनाल ट्रीटमेंट होगा। सिमिलरली, don't just jump to business talks, try to build a good connection with your investor। Sales may, as much as it is about talking, it is also about asking good questions. As much as you should ask good questions, you should impart knowledge also। And then there is this fabbing technique. What is fab and what are the 3 magical words? So this is the sales process। उसके बाद आता है objection handling and closing sales। So अल्टीमेट सेल्स मशीन की किताब में लिखी गई है कि इफ यू आर फ्रेंड्स विथ योर इन्वेस्टर्स, राइट, व्हिच मींस दैट इफ योर इन्वेस्टर ट्रस्ट्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, very difficult for that investor to be hijacked by somebody else, very hard for another advisor to take them away from you। now उसका मतलब है कि establishing rapport का मतलब है कि आप एक कनेक्शन बनाते हैं, और कनेक्शन के लिए while I would have mentioned active listening as point number 2, but active listening is very, very important because God has given us 2 ears and 1 mouth, which shows that we have to use our 2 ears very well। So when it comes to advisory business, इसमें active listening करना, just listen to your clients, don't interrupt him, listen what he has to say, is very, very important। So listen people into buying। एक कहावत है, instead of talking your way out of your sale, just hear them out। नहीं तो इन्वेस्टर को लगेगा अरे मेरी बात तो उसने सुना ही नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव को समझा ही नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्टिव लिसनिंग का मतलब है यू आर लिसनिंग विदाउट इंटरप्शन, यू आर लिसनिंग विदाउट योर थॉट्स इंटरफियरिंग इनटू योर माइंड। कभी कभार हम ऐसे लिसन करते हैं, वी आर लिसनिंग बट वी आर मेंटली प्रिपेयरिंग कि इसका जवाब क्या दें। You have to shut down, you just have to listen without interrupting, without having those mental games in your mind। उसके बाद आता है liking principle, और एक टिप दिया गया है in a book called How to Win Friends People Carnegie, और वो कहते हैं कि हर किसी को अपना नाम जो है ना बहुत प्यारा लगता है। So if you really want to build a good connection with your investor, try using their name often, maybe once in the beginning, once in the middle of your conversation, once at the end of your conversation। और छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर अटेंशन देना, उनका बर्थडे कब आता है, उनका एनिवर्सरी कब आता है, अगर आप उन्हें फेसबुक एंड लिंक्डइन में फॉलो कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, वो अपना डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, क्या आप उनको उनके पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको फोन करके कंग्रेचुलेट करते हैं। ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखना जरूरी है, और ये सब आप करोगे that investor will like you, will trust you। so trusting क्या होता है, इनफैक्ट लाइकिंग को लोगों को लगता है ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इसके ऊपर there is a chapter समर्पित, there is a chapter dedicated to the principle of liking in the book called Influence the Psychology of Persuasion by Robert Cialdini। and Robert Cialdini was very well respected by Charlie Munger, partner of Warren Buffett। and वो कहते हैं कि this is one principle of persuasion। people think persuasion का मतलब है कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोले, बहुत अच्छा हिंदी बोले, बहुत be a good conversationalist। no, those softer sides very important है, which means that don't quickly jump to business sales। exchange pleasantries, simple thing, good morning, good afternoon, good evening, क्या हाल है आपका, कैसे आप हो, आपके बच्चे अच्छे हैं कि नहीं, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, how are you doing, how are your children, how is your health, how was your vacation। please exchange those pleasantries, find out areas of similarities। we might be from different regions, but if our values are similar, that means the client feels that you are like him or you are like her। for example, if you both believe in charity,
You can always get that point. So, wow, that is so nice that you're giving to some charitable organization. I have also been giving to some charitable organization, and it's so nice to get find a person, a nice person like you who believes in giving back to the society, which means you're finding some similarity between you and your investor, which is which can be basically, yeah, we went to the same school, or our mothers are from the same city, or we went to the same university. That can be also areas of liking, which you can actually tell to your investor, oh sir, I'm also from Nagpur. Oh, I also went to that college. Ek hota hai your school, your city, your community, your caste, your language की similarity. एंड इंडिया में होता है ऐसा, हमने देखा है कि कुछ कम्युनिटी के लोग अपने साथ ही घूमते हैं. वो क्यों होता है? बिकॉज दे फील कंफर्टेबल देयर. सो व्हेन यू find out areas of similarity, you're creating a bond. Genuine compliments. Nobody says no to praise. Always compliment. Humility. Sir, this is a fantastic perspective. Thank you for giving me time. Thank you for, we are meeting today. I'm feeling so happy. Congratulations on your promotion, etc. So offer genuine compliments, being helpful. लोगों को लगता है यार हेल्प किया बस धंधा नहीं आया. हर चीज जो होता है ट्रांजैक्शनल नहीं होता है, राइट? इफ यू लाइक, एक एडवाइजर मुझे कह रहे थे चेन्नई में कि वन ऑफ हिज इन्वेस्टर्स, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका मेडिक्लेम पॉलिसी कैशलेस नहीं हो रहा था. तो ही विजिटेड द इन्वेस्टर इन हॉस्पिटल and he constantly called that medical insurance company. He was personally involved to see कि उनका जो cashless claim है वो process हो जाए, and he helped the client so much with nothing in expectation. But when the client got discharged, the first thing the client did was, when he regained his health back, he gave him a 1 crore check. He said कि जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, आप आके खड़े होके मेरे लिए आपने इतना कुछ किया. तो कहते हैं ना, कर्म करो फल की प्रतीक्षा मत करो. हर चीज ट्रांजैक्शनल नहीं होता है. थोड़ी बहुत आपने इंफॉर्मेटिव कुछ आर्टिकल दे दिए, किसी को ज्ञान दे दिया, किसी का हेल्प कर दिया, दीज आर ऑल लाइकिंग प्रिंसिपल्स. एक और बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय उनका नेवर स्प्लिट द डिफरेंस करके एक बहुत अच्छा सा बुक है. एंड उसमें इट इज रिटन बाय एन एक्स FBI नेगोशिएटर, एंड ही टेल्स कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग. व्हाट इज मिररिंग? कि ट्राई टू मिरर योर इन्वेस्टर्स बॉडी लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इन्वेस्टर आगे झुक रहा है, यू ऑल्सो बेंड फॉरवर्ड. इफ ही इज बेंडिंग बैकवर्ड्स, you also bend backwards. If he is standing, you also stand. If he is sitting, you also sit. If he is, sitting like this, you also sit like this. If he is speaking in a slow tone, you also reduce your tone. This is all called mirroring the behavior. So that एक synchronize हो जाता है, उसको लगता है again कि यार, this person is giving me attention. ये सब भी आप ना करो. तो be a good listener. And whatever your investor speaks, अगर investor कुछ एक लाइन बोल रहा है, उसमें से अगर उसने कोई वर्ड या शब्द यूज किया है, you can use the same word or शब्द in when you're replying back to him. So if he says, I'm looking at revamping my MF portfolio, you can always tell him, yes sir, it's great that you're revamping your MF schemes. So आपने उनके 2 words use किए, उसको भी कहते हैं mirroring. मतलब repeating some words, यहाँ पे मैंने last 3 words लिखा है, but repeating some words that has been used by your investor. All these are techniques to establish rapport. And attention to detail. Do you know your investor's birthday anniversary date? Do you know their family members' birthdays? Do you know their hobbies? Do you know their achievements? Do you capture it somewhere? maybe आप एक डायरी में लिख रहे हैं, या आपका जो भी जीमेल यूज कर रहे हैं, वहां पे आप जीमेल का कैलेंडर को ओपन करके लिख सकते हैं कि 28 दिसंबर में इन क्लाइंट्स का बर्थडे आता है, 29 दिसंबर में इन क्लाइंट्स का, क्योंकि वो आपको फिर पॉपअप देगा. एंड दैट विल गिव यू द आइडिया कि आज इनको विश करना है, इनको एक व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज. And as I mentioned earlier, never miss an opportunity to congratulate and celebrate your client's achievement if he has posted it on social media. So we have discussed just one part of selling effectively. The second part is
lot of people, and I get these kind of mails by companies ki 5 stocks that will make you crorepati in the next year. ये सारी जो आर्टिकल्स होती है वो काफी क्लीशेड होती है, मतलब they are not, they are and fishy rather than being genuine. So these kind of question ki sir, you want to have crores of rupees, do you want to increase your returns? Everything is not about price, everything is not about being a crorepati overnight, right? हर चीज वो नहीं होता है, लेकिन you have to, because this sounds very fake, very cheesy. So the kind of questions that you can ask is, questions is very important. And Rudyard Kipling, जिन्होंने Jungle Book की किताब लिखी थी, वो कहते हैं कि I keep the company of 6 honest serving men. They taught me all I know, and their names are what, why, when, how, where, and who. So please ask questions, and questions can be closed-ended, but open-ended questions are good to start with. And the kind of questions that you can ask is, I respect you and your business, your time. I want to take a moment to truly understand. मैं आपके business और आपके time को respect करता हूँ, लेकिन I want to understand कि आपके concerns क्या हैं. What are your concerns? I respect your time. I respect your business. आपके क्या concerns हैं? So that I can solve them. उनको आप ये भी पूछ सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि if you were to be financially free, अगर आप फाइनेंशियली फ्री, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? क्या वो 5 करोड़ पैसा है? क्या वो 3 करोड़ बैंक अकाउंट में होना चाहिए? क्या वो 100 करोड़ होना चाहिए? अगर आपके पास इतना पैसा आता है तो आप अपने जीवन के साथ क्या करोगे? और उस पैसे को क्वांटिफाई करके बताओ, राइट? और पूछ सकते हो, क्योंकि मिजरी लव्स कंपनी, तो कभी कभार वी हैव टू लिसन टू व्हाट योर इन्वेस्टर सेज. आप उनसे पूछ सकते हो, व्हाट आर द 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग सो फार? Are there any issues you're facing in your money management area, budgeting area? उनको ये भी पूछ सकते हो, what criteria do you choose? क्या criteria आप choose करते हैं? You have to have a conversation. The conversation does not start with a statement, it starts with a question. ये भी बहुत मुझे financial advisors ने कहा है कि हम इस question के साथ शुरू करते हैं कि is there any part of your portfolio that requires guidance? तो rather than saying कि I am this, I am that, आपने अपना why बताया, उसके बाद पूछ सकते हो, sir, any issues that you are having, concerns you are having in money management? Is there any part of your portfolio that you require guidance? What criteria are you choosing to select your investment products? Ask smart questions. I hope that is clear to everyone. Yeah. Yeah. Thank you, madam. Madam, if customer says no, I don't have any problem, then what will be answered? So great, no problem. So go to another question. Is there any part of your portfolio that requires guidance? Or what criteria do you have? How do you want me to help you? So there'll be some questions that will come. So impromptu you say. If they say no, very good. I understand you don't have any issues, but is there any area where you require some guidance? Is there any perspective that you require? You might have market ka data, product ka data. Why do you want to spill all your weapons first? Put it into a question format now, because people who ask questions will have control. But today, madam, every investor have 5 to 6 advisors behind, as you Pardon know, me? very clear. Pardon me, sir. I'm I'm not able telling to hear you. Yeah, madam. Yeah. Now you are. Yes. No, I'm telling you, every investor have 4 to 5 advisors in queue, as you know. Yes. So everyone hunting for business. Yes. So the service is also all-time high, everyone do, and advisory also. So that kind of scenario, most of them having good knowledge and good services behind. So if I ask this kind of question, the answer will come no. Then what will be the scenario? So they say, okay, no problem, sir. I understand that. Always empathize, right? The idea is that we need not be defensive, because you're assume that you are from Hyderabad or Telangana or AP. Your field is huge, right? So you can always say ki, well, very good, sir. I'm sure that you may not have any issues. Doesn't matter. But is there any aspect that you want me to clarify? Is there something about markets, any products that you want me to clarify? Now, great that you don't have any money management issues, but is there any criteria that you choose? You have to select investment products. So you need some good questions. I'm just giving you some ideas.
I hope that answers your question, Viru. So to some extent, Yeah, ma'am. yeah, thank you so much. Thanks for putting it. Don't worry. As I've said, these are mine. All of this has come from financial advisors only. There has to be some conversation starter. The point that I'm trying to say is don't plunge into products. Try asking. So they also feel happy na ki you are asking. For example, when I was approached by one company for a job interview, that HR girl was a very smart girl. She asked me, "Have you heard about this company?" Now, it might seem to be a very simple question, but it was quite a good question that she asked. So, as I've said, you create your own cheat list, your own checklist, and automatically it will happen. This need not be parroted. What I'm trying to say is that do ask questions. Now, the other is ki, as I've said, ki today, like you have said, ki one advisor might have one client might have 3-4 advisors. Point taken. I hear you out. So sometimes we may not even ask questions. We might hypothesize, hypothesize needs, or we might preempt needs. For that, if you are meeting an IT person, you may want to use a chat GPT or a copilot, and chat GPT and copilot give you a web version. And in that web version, so let me show it to you. Just give me a moment, please. So let me go here and go to Google, write chat GPT, and go to something called OpenAI. Not the first link, second link, but something called OpenAI. Now, and select try chat GPT. So I have actually logged in. You can log in via your Gmail, your Apple account, etc. And there is something called search the web. So I have logged in via my Gmail. If you want, I can show it to you also how to do it. So I've just logged out of ChatGPT. I can sign up either by giving my email ID and a password. या मैं Google या Microsoft या Apple के through login कर सकती हूँ. And I am going to log in via Gmail, and I'm going to use my Gmail account. So login via Gmail, Apple सब possible है. Now, ChatGPT recently has given an option of search the web, जो पहले नहीं था. If I were to be you, Viru, and I'm meeting an IT client in Hyderabad, so I'm going to write, I'm meeting an IT client in Hyderabad, and an IT professional in Hyderabad. Assume that, you're staying there. What are the challenges that IT professionals are facing? Challenges are facing when it comes to personal finance, I will do a bit, rely on Google. I will rely on either speaking with a lot of other friends of mine who are in the IT field, or else I will, because they give you a chat option, so even GPT has become like a Google, because going through different articles across the web, like it has gone through Medium, it has gone through a lot of websites, and it's giving you this may not, they might have technical expertise, they may not have knowledge about personal finance management. A software engineer might focus on salary increments without considering revenues like mutual funds. Managing irregular income, irregularity in budget and all can be there. High living expenses in urban areas. So, this is the challenge that is being faced by an IT professional. And you can use that and say, most of my investors who are IT professional are actually speaking about high cost of living. And with that being said, how are you investing across investment products right now? Are they into bonds, into FDs, etc.? What about your thoughts about equity mutual funds? What about your thoughts about some products that are hybrid in nature? So again, what you are doing is कि this particular professional के बंदे में ये problem आ सकता है, and you are preempting needs and you are and their challenges, and then you are asking a question. So this kind of a thing, as I've said, is called
teach. So first, what you do is you preempt. Then what you are doing is, you give them guidance, you give them perspectives. They might have wrong assumptions. You clear their assumptions, and then you take control of the conversation. And you do that with lots of insights and data. Now, you might still be thinking, Amrita, what are you speaking about? So first is that always research. And as I've told you, you research. Now ChatGPT has made your life easier. Use the web version to research. What are the problems doctors are facing in my area? What are the problems and architects are facing in my area? What are the challenges of women investors in my place? So that you research, you understand ki unke kya hot buttons hai. Hot buttons matlab what are their pain points. And then once you know what are the pain points, then you do further study around it. You would read blogs, you'll see YouTube videos, you will also interact with further colleagues and friends of yours, you will gather your own experience, etc. And then when you have all of that, you will give insights. So why am I saying this? Again, to explain what is preempting needs is that if I have to pitch Sundaram Midcap to you, if I say that Sundaram Midcap Fund has a 12,000 crore AUM, this is just a feature of that fund, vulnerable to competition. If I'm going to say that Sundaram Midcap Fund has a track record of 22 years, it has seen multiple market cycles, blah, blah, blah. It has given 25% return and money has doubled every 3 years. Wow, fresh information. Very, very good. That's an advantage. But if you want to create an impact, benefit, तो पहले है कि either ask questions. As I've said, what are your concerns? Is there any part of your portfolio? Or sometimes you have to preempt their need. And what do I mean by preempting their need is you can also say that currently IT professionals at this juncture whom I'm interacting with are looking at large cap funds over mid and small caps. What are your thoughts around it? Is that what you need to? Currently, my investors who are architects, and most of them are consultant in nature, at current market conditions, are looking at hybrid funds and especially balanced advantage funds. What about you, sir? Is that your need to? He might say, oh, what is balanced advantage fund? There you go. You had an opportunity to explain something. But many a times what we do is we pitch the product directly. Oh, I'm pitching you this product. इसका 20 साल का track record है. इसने इतना alpha generate किया, इतना CAGR generate किया. Tell me one thing, alpha and CAGR हमने NISM 5A में पढ़ा होगा. How many of us still remember how to calculate it? When we ourselves sometimes might forget, how do you expect an investor to know all these terminologies? So चालेल का? एक 50 लाखाची लिंक त्यांना पाठवायची. मी तुम्हाला फंडचे नाव पाठवतो आणि एक श्रिया म्हणून आहे, शरद सूर्यवंशी, तुम्हाला नाव टाकतो. Yeah. So that is called benefit. So if you want to convert any feature, see, for example, there can be a pen, but I'm not looking at just a pen. I might look as a trainer, I might look a pen that can work on different surfaces. I might want a pen that is durable, but a pen can be beautiful looking also. But if you're going to highlight that this pen is beautiful looking, it's a feature for me. But if you're going to highlight to me that this pen can work on multiple surfaces, multiple boards, and it has good quality ink, that is the feature I'm looking at. How do you get that? First is that start with some questions, as I've said. Is there any part of your portfolio? Do you have any concerns? How do you filter products? Or sometimes you have to be a little smart. Do a bit of research about that investor or that investor's profession and ask many people in your area are investing in this kind of funds. Is that your need to? So then build it up. And that's how you convert feature into benefit. I got somebody who is asking me, what are the 3 magical words in sales? The 3 magical words is, if you want to convert any feature into benefit, you have to use the word. Not only ask questions or preempt needs, people in your profession is doing so and so, how about you, right? Then if they say, yes, they are doing this, then you elaborate, then you give insights, then you give facts, then you present confidently. Another way to turn any feature into benefit is using the words, which means that. Which means that is, I'm recommending multi-assets allocation fund to you. Which means that.
बिकॉज भी आप यूज कर सकते हो, बट विच मीन्स दैट लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, which means that it will give you a reasonable investing experience, etc. Which means that when one asset class is not doing well, if equity is not doing well, it gets compensated by gold doing well, which means that you have a reasonable investing experience. Agar aap 3 बार which means that use karoge, you will see that your client will see the same product as beneficial to him rather than seeing it as a mere feature. I hope I have cleared. So a quick recap. What are the steps in the first 4 steps? Amrita, in a can you take this sales recap in process? Hindi, please, if you can? Sure. You know, thank Yeah. you. Thank you. So the first thing is कि पहले आप एक फ्रेंड के, so basically I spoke in English, Deep sir, because Sameer had written that some of them are telling कि English में भी No करो. problem. No problem. Yeah. So make it So in पहले English. Make Yeah. it in English. Yeah, please. तो पहली चीज है कि आप अपने क्लाइंट के साथ रपो बिल्ड करिए. रपो बिल्ड करने के लिए, रपो मतलब कनेक्शन के लिए सुनना बहुत जरूरी है. तो सुनिए अपने क्लाइंट को, रादर देन टॉक करिए. टॉक आप करोगे, आपके पास सब ब्रह्मास्त्र है, सब आपके पास शस्त्र है. तो पहले आप अपने इन्वेस्टर के साथ के नीड्स को सुनिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी चीजें होती है जैसे हेल्पफुल होना, उनका नाम को यूज करना बार बार, आप प्लेजेंट्रीज को एक्सचेंज करना, मतलब हाय हेलो हाउ आर यू, आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपका वेकेशन कैसे हुआ. क्योंकि जब भी एक डेंटिस्ट हमारा दांत उखाड़ता है वो पहले एनेस्थीसिया देता है, वैसे वो दांत एक्सट्रैक्ट नहीं करता है. देन आपने एक बार रपो बनाया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस पूछिए. क्योंकि आप अपना जो भी बेस्ट टूल्स है, अगर आप उसे वैसे ही थ्रो कर देंगे क्लाइंट के ऊपर, सो दैट विल लुक लाइक फीचर. तो पहले उनसे पूछिए कि सर हैव यू हर्ड अबाउट म्यूचुअल फंड, वो भी एक क्वेश्चन है. ग्रेट. आप कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, आप बताइए. आपके लिए सर फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब है, आप अपने आप को कब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट समझेंगे. अगर आपको रिटायर होना है तो कितने पैसे की जरूरत होगी जिससे आपको लगता है कि आपका जीवन सुरक्षित रहेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछिए. लेकिन इसको कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग. लेकिन जैसे वीरू ने कहा कि हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो नॉट इंडस्ट्री, हमारा जो कंट्री है वो काफी इवॉल्व हो रहा है. अर्बन सेंटर्स में पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड स्मार्टर, दे हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार हमें रिसर्च करना होगा, और इसके लिए मैंने चैट जीपीटी का टूल आपको बताया था, जहां पे आप चैट जीपीटी जाके आप पूछ सकते हैं चैट जीपीटी को. उसका एक वेब वर्जन होता है कि एक आईटी क्लाइंट या एक डॉक्टर को क्या क्या मनी मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है. और आप अपने खुद के रिसर्च के साथ आपको आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं. तो आप कह सकते हो कि अभी जो आपके प्रोफेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी इस दौर पे हमारे एनालिटिक्स के आधार पर इक्विटी सेविंग्स फंड या बैलेंस फंड बेहतरीन रहेगा, लार्ज कैप फंड बेहतरीन रहेगा विद लिटिल एक्सपोजर टू मिड कैप्स, मिड एंड स्मॉल कैप्स. जब आप इस प्रकार के साथ कहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, सो आई थिंक एट दिस जंक्शन आपके जो भी इन्वेस्टर्स है सिमिलर प्रोफाइल में, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स विल बी रेकमेंडेड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव नीड्स. तो आप या ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, या तो आप रिसर्च करके आप एक हाइपोथेसिस करके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या प्योर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. क्योंकि बिना क्वेश्चंस कोई भी प्रोडक्ट्स को आप सजेस्ट करेंगे तो वो एक मात्र फीचर रहता है, वो बेनिफिट नहीं रहता है. लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से एक फीचर जो होता है वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है. और एक दूसरा तरीका होता है बेनिफिट को कन्वर्ट करने के लिए, फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट करने के लिए, और वो 3 मैजिकल वर्ड्स आर व्हिच मींस दैट मींस कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर आप मैक्सिमा स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं जहां पे 5% गोल्ड है और 95% इक्विटी है,
तो आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बेटर है, विच मीन्स दैट उसमें इसमें इक्विटी इतना है, गोल्ड इतना है, विच मीन्स दैट अगर आप इसमें 10 साल के लिए आएंगे आपको वेल्थ अप्रिसिएशन भी मिलेगा, इक्विटी के थ्रू, गोल्ड के थ्रू भी आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, विच मीन्स दैट ये टैक्सेशन के भी एंगल में अगर आप 1 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं या 10 साल के बाद रिडीम कर रहे हैं, गेन्स अप टू 1.25 लाख में टैक्स नहीं लगेगा, और उसके ऊपर जो है 12.5% का टैक्स लगेगा, विच मीन्स दैट अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 1.25 पे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो 75,000 है उसमें टैक्स लगेगा, विच मीन्स दैट 70 में 75 में 12.5% इतना टैक्स लगेगा। आप कंपेयर करिए। So you have to use the magical word which means that at least 5-6 times आपका एक टेम्पो भी बना रहेगा और it will be very beneficial also. So हमने काफी सारी चीजें कवर की है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, सेल्स में देयर विल ऑलवेज बी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन तो होना ही होना है। तो सबसे पहली चीज होती है कि ऑब्जेक्शन मतलब एक विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू। जरूरी नहीं है कि हर कोई इन्वेस्टर हमारे जैसे ही सोचे, उनका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो पहली चीज होती है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, विच मीन्स कि हमें काम रहना पड़ेगा। दूसरा है कि उनका जो भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अक्नॉलेज करे, उसे रेस्पेक्ट करे। अक्नॉलेज का मतलब है रेस्पेक्ट करना। आई अंडरस्टैंड, उसके लाइंस होते हैं आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, ये एक वैलिड पॉइंट है। ये जब आप लाइंस को यूज करते हैं उसको कहते हैं अक्नॉलेजमेंट। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि उसने जो भी कहा, क्लाइंट ने जो भी कहा, आप उसको अपने लैंग्वेज में रिफ्रेम करके दोबारा उसको बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे उदाहरण सुष्मिता सेन का देना चाहूंगी। जब वो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए फाइनलिस्ट बनी थी, जब भी उनको एक जज क्वेश्चन पूछता था, वो उसी क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में दोहराती थी, और उनसे उनको वो फायदा मिलता था कि उनको समय मिलता था सोचने के लिए कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो पैराफ्रेजिंग है कि जो भी क्लाइंट ने कहा उसको आप अपने लैंग्वेज में उनको दोबारा बताते हैं, ताकि क्लाइंट को लगे कि आपने उनके कंसर्न को समझा है। आपको भी टाइम मिलता है टू प्रोसेस कि इनको क्या जवाब देना है। तो काम रहिए, नॉड करिए, अक्नॉलेज करिए, these are all पैराफ्रेज करिए, ये all weapons of empathy। एम्पथी मतलब उनके शूज में, उनके पर्सपेक्टिव में वो क्या सोच रहे हैं उसको अक्नॉलेज करना। लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में थोड़ी बहुत यहाँ पे भी क्वेश्चंस जो होता है टू गेट इन्वेस्टमेंट्स, टू हैंडल ऑब्जेक्शन, दोनों में काम आएगा। एंड देन यू हैंडल द ऑब्जेक्शन विद द नॉलेज दैट यू हैव। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू अ केस स्टडी। अज्यूम एक इन्वेस्टर है जिसने मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया है, जिसको 5 साल में 25% का रिटर्न मिला है। लेकिन आपका मॉडल पोर्टफोलियो सजेस्ट कर रहा है कि इफ यू हैड एलोकेटेड 10% इन लार्ज कैप फंड्स, तो जो भी शार्प वॉलिटिलिटी और करेक्शंस हमने देखे मार्केट्स में, वेयर सेंसेक्स हैज करेक्टेड बाय 4,000-5,000 पॉइंट्स, उससे उनको कुछ सुरक्षा कवच मिलता। तो जब आपने इस चीज को सजेस्ट किया कि पार्क योर फंड्स इन लार्ज कैप फंड्स, he said he is fine with the current allocation, मुझे नहीं करना है, I don't want to change. How will you handle the objection? तो आप इसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको क्लाइंट कह रहा है कि मुझे नहीं लार्ज कैप फंड की जरूरत नहीं है, या वीरू आपने कहा कि क्लाइंट कह रहा है मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट आल्सो इज एन ऑब्जेक्शन। So now you have to handle the object. आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्लाइंट ने कहा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट आल्सो इज एन ऑब्जेक्शन। तो आप कैसे अक्नॉलेज एंड पैराफ्रेज करेंगे? हाउ विल यू अक्नॉलेज कि क्लाइंट इज सेइंग आई डोंट रिक्वायर लार्ज कैप फंड्स, आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम। हाउ आर यू गोइंग टू अक्नॉलेज? तो आप कैसे इसको अक्नॉलेज करेंगे? आपके पास अगर स्क्रिप्ट्स है तो आप बताइए। तो मार्केट इज सेइंग कि मैं आई विल आस्क मोर क्वेश्चंस, मैं काफी क्वेश्चन वाला हूँ।
सत्यमूर्ति जी कह रहे हैं, यस ही इज लुकिंग एट रिटर्न्स बट मैनेजिंग वॉलेटिलिटी इज इम्पोर्टेंट। ये आप इन हैंडल ऑब्जेक्शन, ये आप देंगे उनको बिफ दैट टू यू, आई अप्रिशिएट। सबसे पहले words like understand that you feel comfortable with your current allocation to mid caps. I completely understand your concern. I completely understand that you are comfortable with mid cap. मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपका कंफर्ट जो है it is with mid cap. मैं आपके द्वारा जो भी आपका कंसर्न है उसको मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, क्योंकि स्पेशली दे हैव गिवन डिसेंट रिटर्न्स। तो इसका मतलब है अब इसमें क्या किया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपने कहा, और उन्होंने कहा कि मैंने मिड कैप में इन्वेस्ट किया। मिड कैप का मतलब है स्मॉल एंड मिड कैप। आपने वही 2-3 वर्ड्स उन्होंने जो कहा, क्लाइंट ने जो कहा, यू हैव रिपीटेड इट, सो यू आर एक्नॉलेजिंग, यू आर पैराफ्रेजिंग इट। सेकेंड इज जस्ट लिसन, राइट, कि लेट एंड मतलब वो जो कह रहे हैं उनको इंटरप्ट मत करिए, काम रहिए, एक्नॉलेज करिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछिए कि सर okay, I completely understand your concern कि that you don't want large cap funds, और I completely understand कि आपको सिर्फ mid cap में ही रहना है। तो कुछ benefits आप देखते हैं in maintaining your investments in mid cap? क्या आप कुछ benefits इसमें देख रहे हैं कि मेरा जो investments है वो सिर्फ small and mid caps में ही रहना चाहिए, या कुछ ऐसा concern आपको दिख रहा है कि large cap में कोई return की problem है? क्या concern है आपका? तो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना है। पैराफ्रेज मतलब वो जो कह रहे उसके 2-3 वर्ड्स या तो आप भी यूज करिए या तो उसको अपने लैंग्वेज में यूज करिए। वर्ड्स लाइक आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, वैलिड पॉइंट, इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। तो आपने उनका जो ऑब्जेक्शन है उसको थोड़ा सा कम किया, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया। उसके बाद पूछिए कि कुछ आपको लार्ज कैप को लेके कोई कंसर्न है, कोई रिटर्न को लेके कोई कंसर्न है, आपको क्या बेनिफिट्स नजर में आ रहा है थ्रू मिड कैप। तो पहले समझिए, पूरा इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड को समझिए, उसके बाद आपको हैंडल करना है ऑब्जेक्शन। उसके लिए अगेन यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट दिया है कि अगेन दिस इज ऑल एक्नॉलेजमेंट कि आई अंडरस्टैंड कि आपको स्मॉल एंड मिड कैप्स ही चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि वो आपको ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन लेट्स ऑल्सो एक्सप्लोर कि हाउ लार्ज कैप्स कैन एनहांस योर ओवरऑल वॉलेटिलिटी। क्योंकि आप इन्वेस्टर से डील कर रहे हैं, द पावर ऑफ सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का मीनिंग है एनालॉजीज यूज करना। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर आप घर बना रहे हैं तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स जो होते हैं वो कस्टम या कस्टम डिजाइन फीचर्स होते हैं। ये आपके घर को पॉलिश लुक देते हैं, राइट। और अच्छा कस्टम डिजाइन, अगर आप अच्छे ग्रेनाइट लगाएंगे, अच्छा मार्बल फ्लोरिंग करेंगे, तो आपका घर का प्राइस और वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके घर को एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए, उसके लिए लार्ज कैप जरूरी है। तो लार्ज कैप जस्ट एक सॉलिड फाउंडेशन होता है। जैसे आप घर बनाते हैं जिसके लिए सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत होती है, लार्ज कैप भी एक सॉलिड फाउंडेशन होता है। ये एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होता है। ये आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में स्टेबिलिटी देता है, ताकि जैसे आपका घर स्टैंड करे स्ट्रॉन्ग, वैसे आप मार्केट फ्लक्चुएशन से स्टैंड करे स्ट्रॉन्ग। ये आपको स्टेबिलिटी देगा एंड इट विल कॉम्प्लीमेंट। तो इसीलिए इसको एक बफर अगेंस्ट मार्केट करेक्शन एंड अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए। तो वही चीज जो आप कह रहे हैं कि मैनेजिंग वॉलेटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वही बोलेंगे। जैसे आई थिंक ये जो मैनेजिंग वॉलेटिलिटी है, सत्यमूर्ति जी ने एग्जांपल दिया था, यस, बट ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज, जिसे कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी है कि आप उदाहरण दे रहे हैं, आप कोई रेफरेंस दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट एंड ओशन, ओशन और स्टॉक मार्केट का कोई नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन जब आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक समुद्र के तरह, जैसे समुद्र में लहरें होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी लहरें होते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जिसे एनालॉजी कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, एंड सप्लीमेंटेड विद सम डेटा ऑल्सो, फिर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं। मतलब आपके पास है जो आपको कहना है, तो पर उससे पहले थोड़ा सा एक्नॉलेज करते हैं उन्हें, उसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद आप हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शन।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया, दैट इज वो जो है दैट इज नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्शन. सो समटाइम्स यू हैव टू आइसोलेट द ऑब्जेक्शन. आइसोलेटिंग द ऑब्जेक्शन होता है, यू हैव टू यूज योर सिक्स सेंस कि क्लाइंट जो कह रहा है वो कुछ ऐसा तो एक रीजन नहीं दे रहा है मुझे भगाने के लिए, कुछ तो होगा इस ऑब्जेक्शन के पीछे, कुछ कुछ रूट कॉज तो होगा. तो इसीलिए कभी कभार यू हैव टू ट्रस्ट योर सिक्स सेंस एंड आइसोलेट द ऑब्जेक्शन. आइसोलेशन के लिए यू हैव टू ट्रस्ट योर सिक्स सेंस या गट फीलिंग कि रूट कॉज क्या है. रूट कॉज हो सकता है वो कह रहे हैं कि नहीं 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 मुझे मिड कैप में ही रहना है, स्मॉल एंड मिड कैप में ही रहना है, लार्ज कैप जाना नहीं है, वो आपको ये दे रहा है ऑब्जेक्शन. हो सकता है कि उसका कोई फाइनेंशियल कंसर्न हो, उसके पास लैक ऑफ फंड्स हो, उसके पास पैसे की कमी हो सकता है कि आप उसे 5 साल का टाइम फ्रेम मांग रहे हैं टू इन्वेस्ट इनटू लार्ज कैप, उसके पास सिर्फ 5 महीने का टाइम फ्रेम है. हो सकता है कि वो इक्विटी के करेक्शन से एकदम घबरा गया हो, उसका रिस्क टॉलरेंस नीचे हो गया हो सकता है कि वो आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा हो सकता है कि वो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है. तो मेनी टाइम्स जो ऑब्जेक्शन दिया जाता है वो ट्रू ऑब्जेक्शन नहीं होता है. तो अगर आपको लगता है कहीं भी कि ये ट्रू ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है सर, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही रहना है, नो प्रॉब्लम, से फॉर एग्जांपल. इसके अलावा इज देयर एनी अदर कंसर्न, इज देयर एनी, अगर इसको हम हैंडल करेंगे तो क्या आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे? अगर आपको लगता है कि आपको स्मॉल एंड मिड कैप में ही रहना है, नो प्रॉब्लम, मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ या कर देती हूँ कि फंड सही है कि नहीं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है. इसके अलावा अगर इसको हमने टैकल किया, क्या आपके पास कुछ और कंसर्न है? इसको कहते हैं आइसोलेशन. तो हो सकता कैसे करते हैं आइसोलेशन, आई विल टेल यू, लेकिन उससे पहले अगर किसी का फाइनेंशियल कंसर्न है तो आप कह सकते हो कि सर आपको 5 लाख रुपए के हिसाब से. किसी का अगर रिस्क टॉलरेंस ज्यादा नहीं है, या तो आप उसको लेस रिस्क के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए एसटीपी के द्वारा. अगर किसी को आप जो कह रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देने होंगे. म्यूचुअल फंड समझाना है तो आप कह सकते हो कि म्यूचुअल फंड एक एक्सपर्ट शेफ की तरह है, एक्सपर्ट कुक के तरह है. जैसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में वैरायटी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो सिंपल लैंग्वेज, जार्गन नहीं यूज करना, वो करना होगा. अगर किसी के पास ट्रस्ट की इशू हो तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास NISM 5A की सर्टिफिकेशन है, हमने भी CFP की सर्टिफिकेशन ली है, हमने CFA भी लिया है. यू हैव टू से दैट. यू कैन ऑल्सो से कि आई मैनेज 800 कस्टमर्स एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये मेरे टेस्टिमोनियल्स है, यू मे वांट टू लुक एट इट. और हो सकता है कि ही ओनली बिलीव्स इन रियल एस्टेट, तो और NPS, देन यू कैन गिव अ कंपैरिजन NPS वर्सेस म्यूचुअल फंड की. NPS भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी आती है, म्यूचुअल फंड में भी SWP का ऑप्शन है. तो आइसोलेशन कैसे किया जाए, मैं उसको एक वे में समझाती हूँ. वही जगह जाते हैं, उस इन्वेस्टर के पास जाते हैं जो लार्ज कैप में एक्सपोजर करना नहीं चाहता है. तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या ये जो आप मिड कैप और स्मॉल कैप को प्रेफर कर रहे हैं, इज दैट ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी? क्या ये चीज हम दोनों के बीच की जड़ की अकड़ है? या अगर इसको हम डील करें तो विल यू इन्वेस्ट फर्दर? हो सकता है कि अगर क्लाइंट ओपन होता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय से ग्रो, मैंने ग्रो में अकाउंट खोल दिया है जहां पे मैं कभी भी कोई स्टॉक्स भी खरीद सकता हूँ, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकता हूँ. दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, जेनजी आर डूइंग इट. तो आपको फिर रियल रीजन पता चल जाता है कि ही इज इन्वेस्टिंग इन सम अदर ऐप. तो फिर आप, जब आपको सब कुछ पता चल गया, तब आप उसको कहेंगे कि देखिए सर, अगर आसानी से इन्वेस्ट करना और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना और एक मोबाइल ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना आपकी चाहत है, तो हम भी आपको आसानी से इन्वेस्ट करने का तरीका दे रहे हैं, हम भी आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का तरीका दे रहे हैं, हम भी आपको मोबाइल के थ्रू इन्वेस्ट करने का तरीका दे रहे हैं. आपने नोटिस किया होगा कि रेगुलर और डायरेक्ट, एंड ऑफ द डे क्या चाहिए कि आप डायरेक्ट प्लान में जाके 1% एक्सपेंस रेशियो कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फालतू प्रोडक्ट्स को चूज किया तो आपको 10% का रिटर्न्स मिलेगा.
लेकिन आप रेगुलर प्लान के थ्रू हमारे साथ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपको 12% का रिटर्न्स मिला, और मेरे एडवाइस के कारण इमरजेंसी की जो सिचुएशन बनी कोविड वगैरह में, तब भी आप रिडीम कर पाए, तो देन यू नो कि ये है मेरा रियल ऑब्जेक्शन। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कभी कभार जो ऑब्जेक्शन क्लाइंट देता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। तो इसीलिए आइसोलेशन टेक्निक, मतलब क्या यही चीज हम दोनों के बीच ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप पूछते हैं इन्वेस्टर को। अगर हम इस चीज को डील करें, क्या आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, ये कहते हैं आइसोलेशन टेक्निक। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद आप अगेन चेक करेंगे इन्वेस्टर के साथ, सर जो मैं कह रही हूँ वो मेक सेंस कर रहा है, क्या आपके मन में और भी कुछ डाउट्स है, और भी कुछ दुविधा है, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे। अगर इन्वेस्टर कहता है नहीं सब कुछ सही है, तो यू हैव टू मूव ऑन स्मूथली। मूव ऑन स्मूथली का मतलब है कि यू हैव टू गो नेक्स्ट, विच इज यू हैव टू टेल द क्लाइंट की ओके हर चीज हो गया, can we now look at additional investments? Clear to everyone? A quick recap. What are the steps used in objection handling? What are the steps used in objection handling? If you can use the chat box और इसको आप आंसर दे सकते हैं तो it will be very good. So can anyone name कुछ हमने techniques use किए, for example, be calm, listen. Yes, Satyamurthy ji, yes, that is right. Be calm, listen. What else? So some of the objection handling techniques are, यहाँ पे और भी आए हैं कि बी काम, आस्क क्वेश्चंस। तो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना है, अक्नॉलेज, आस्क करिए क्वेश्चन, फिर हैंडल करिए। कभी कभार जो मेन ऑब्जेक्शन होता है, वो जो ऑब्जेक्शन क्लाइंट कहता है वो नहीं होता है। यू हैव टू आइसोलेट, अगेन चेक हैव आई क्लैरिफाइड, देन से सर कैन वी नाउ मूव ऑन एंड साइनिंग चेक। सो द लास्ट स्टेप इज क्लोजिंग द सेल। आप सेल को कैसे क्लोज करोगे? देखिए हम सब कुछ करते हैं, हम रेगुलरली मीट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, उनको समझ रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग पूछते नहीं है कि आप बिजनेस दो। इफ यू डोंट आस्क, कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू डोंट आस्क यू नेवर गेट द डेट और द डील। तो फ्यूचर उन्हीं लोगों को बिलोंग करता है जो क्वेश्चंस, जो आस्क करते हैं, नॉट क्वेश्चंस, जो आस्क करते हैं। तो आस्क पे जस्ट सिंपली आस्क, एंड द वे टू आस्क इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर मुझे आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैन वी डू द पेपर वर्क? सर व्हाई डोंट यू गिव अस अ ट्राई? सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद अ स्मॉल एसआईपी? जो आपको आज 500 रुपए का एसआईपी दे रहा है, वो कल आपको 5000 रुपए का एसआईपी दे सकता है, वो परसों आपको 50,000 रुपए का भी एसआईपी दे सकता है। तो जस्ट गिव अस अ ट्राई, मुझे आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेट्स डू द पेपर वर्क। अब नाउ सर सब कुछ सही क्लियर हो गया, नाउ कैन वी अग्री कि टाइमलाइंस क्या है, व्हेन कैन वी गेट द बिजनेस? तो इसको कहते हैं बेसिक क्लोज। दूसरा होता है कि आप ऑल्टरनेट क्लोज करते हैं, मतलब यू गिव टू ऑप्शंस, मंडे या ट्यूसडे। जैसे वुड यू लाइक रेड पेन और ब्लू पेन? वुड यू शुड आई मीट यू मंडे और ट्यूसडे 11 AM और 3 PM? इसको कहते हैं ऑल्टरनेट क्लोज। मतलब आप क्लाइंट को नो कहने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। तो 50 लाख या 1 करोड़ सर, किससे शुरुआत करें? राइट, एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी से शुरुआत करें या 20 साल की एसआईपी से शुरुआत करें? तो अब क्लाइंट को नो करने का ऑप्शन ही दे रहे हैं आप, नहीं दे रहे, आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रहे हैं। इस ऑल्टरनेट क्लोज को अजम्पटिव भी कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मंडे और ट्यूसडे, सर व्हेन शैल वी मीट, इंस्टेड ऑफ सेइंग सर कैन वी मीट, व्हेन शैल वी स्टार्ट, आर यू गिविंग चेक ऑफ 50 lakhs और 1 करोड़? ये अजम्पटिव भी हुआ, मतलब आप अज्यूम कर रहे हैं। अगर आपने सब कुछ सही किया है, अगर आपका कॉन्शियस सही है, अगर आपने अच्छी दिशा से क्लाइंट को गाइड किया है, तो यू कैन ऑलवेज से सर, रादर देन यू डोंट हैव टू बी अपॉलोजेटिक। हमेशा हमें अपने आप को कहना पड़ेगा कि दे आर नॉट डूइंग मी अ फेवर, आई एम डूइंग अ फेवर, आई एम क्रिएटिंग वेल्दी पीपल। टुडे ऑल्सो when I go look back 20 years, I would like to thank my boss
who told me during global financial crisis, अमृता तुम्हारा SIP क्यों नहीं है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था जब सेंसेक्स एंड निफ्टी फेल बाय 60%. मेरी सारी SIPs उस दौरान ही शुरू हुई है. And I only have to thank my boss. So he does not have to thank me. I have to thank. आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, आप लोगों को पैसे से गॉडेस लक्ष्मी से भरपूर कर रहे हैं. तो you don't have to be apologetic and nervous इस पिक्चर के समान. You don't have to see, shall we meet? Sorry सर, आपको पुश कर रहा हूँ, आप हमसे खुश है कि नहीं? Sometimes वो अथॉरिटी हम में होना चाहिए कि कब मिले, कब, कैसे, कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, कब हम शुरुआत करें. 50 लाख का चेक दे रहे हो या 1 लाख का चेक दे रहे हो? यू कैन से इट विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर. तो इसको भी कहते हैं अजम्पटिव, मतलब आपने अज्यूम किया कि सेल हो रहा है और ये काम करता है. अगर आपने सही से एडवाइस दिया तो बोल सकते हो सर सैटरडे को मिले या मंडे को मिले, 1 बजे को मिले या 2 बजे को मिले, 50 लाख का चेक दे रहे हो या 1 करोड़ का चेक दे रहे हो, 50,000 का SIP दे रहे हो या 1 लाख का SIP दे रहे हो, तो वो घूम फिर के नीचे आएगा 10,000 रुपए. सो जो आपको 100 रुपए का देने वाला था SIP, वो अभी आपको 10,000 रुपए का SIP दे रहा है. इसको कहते हैं ऑल्टरनेट. और विदाउट ऑल्टरनेट आप जब कमांड वे में स्पीक करते हैं उसको कहते हैं अजम्पटिव. तो ये होती है क्लोजर, जस्ट आस्क. दूसरा होता है MFD बिजनेस में मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स. बी स्मार्ट. कहाँ पे किस व्यक्ति को कितने फ्रीक्वेंसी में मीट करना है वो आपके ऊपर है. कैट ABC करिए, लेकिन उस कैट ABC को ऐसे एक स्ट्रक्चर करिए कि आप एटलीस्ट इन अ ईयर अगर आप 1000 लोगों को मिल रहे हैं, उसमें से आपको 100 लोग मिलेंगे जो ओपन है, उसमें से 20 लोग मिलेंगे जो इंटरेस्टेड है, उसमें से 5 लोग ये मिलेंगे जो आपको बिजनेस देंगे. सो वो 100 को मीट करना होगा. डायरी मेंटेन करिए, या जैसे मैंने कहा कस्टमर रिलेशनशिप, या खुद का जीमेल कैलेंडर में इनपुट करके रखिए, अपडेट करिए उसे, क्लाइंट्स को सोशल मीडिया में फॉलो करिए. तो जितना आप मीट करेंगे, जितना कनेक्शन करेंगे, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ABC. ABC का मतलब है नॉट ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी कनेक्टिंग. जितना आप कनेक्शन करेंगे उतने ही, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग. योर नेटवर्क विल बिल्ड योर नेट वर्थ. नाउ फाइनल थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज व्हाट इज रस. रस का आप मुझे फुल फॉर्म बताइए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रस? Is it retail advisory service? Is it retina activating system? Is it reactive attachment style? Or what else it is? Any idea? A blind guess. What do you think इसका मतलब हो सकता है? So प्रेरणा जी कह रही है ऑप्शन 3, संतोष जी कह रहे हैं ऑप्शन 3, कैलाश जी कह रहे हैं ऑप्शन 2. In fact, I would say none of them. The correct answer is others, and it is called reticular activating system. Now reticular activating system क्या होता है कि क्या कहा जाता है ना कि पहले की जो भी आप बोलो, सोच विचार के बोलो, तो जो भी आप अपने आप बात कर रहे हैं, जैसे किताब है लर्न ऑप्टिमिज्म, उसमें लिखा गया है the people who are successful, they speak to themselves in a very successful manner. योर सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्सेप्ट करेगा जो आप उसे फीड कर रहे हैं. तो अगर आप कहेंगे कि मैं तो अच्छा हूं ही नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तो हमेशा लाइफ में मेरी स्ट्रगल है, तो आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगी. आप उस नेगेटिविटी से आप अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे. तो बोथ लर्न्ड ऑप्टिमिज्म किताब और अल्टीमेट सेल्स मशीन में ये लिखा गया है कि डोंट से आई विल बी सक्सेसफुल. आप दिन की शुरुआत करिए बाय सेइंग कि आई एम सक्सेसफुल. डोंट से कि मैं अपना जो भी मैंने गोल बनाया है कि मुझे 1 लाख कमीशन प्रति माह चाहिए, आप मत बोलिए कि मैं इसके लिए काम करूंगा. आप कहिए कि मुझे ऑलरेडी 1 लाख का कमीशन पर मंथ मिल रहा है, तो मैंने अपने टारगेट को अचीव ऑलरेडी कर लिया है. डोंट से कि मैं उस बड़े इन्वेस्टर को सम वे टैकल करने वाला हूं. आप अपने आप को करिए कि मैंने इस इन्वेस्टर को जीत लिया है, ये मेरा इन्वेस्टर बन गया है. तो इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. रैस का मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. जो आप अपने आप को कहेंगे वो आपकी रियलिटी बनेगी.
आप ये नहीं कहेंगे कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा, आप अपने आप को कहेंगे कि आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल। और इस मेंटालिटी से जब आप काम करेंगे, और ऑटोमेटिकली सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी विल फेस। मेरा ये मानना है कि लाइफ इज नॉट 100 मीटर स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कुछ कॉल्स आपके मीटिंग्स बहुत सक्सेसफुल जाएंगे, कुछ आपके मीटिंग्स अनसक्सेसफुल जाएंगे। रिजेक्शन मिलना ही है, ऑब्जेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें उसको दिल पे नहीं लेना है। डोंट टेक इट पर्सनली। जैसे कपिल देव जी कहते हैं, इन क्रिकेट वी विन सम वी लूज सम बट द शो मस्ट गो ऑन। सिमिलरली सेल्स में भी कभी आपको बड़ा चेक मिलेगा, कभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, कभी आपको कन्वर्शन मिलेगा, कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब नहीं है कि नहीं मिला तो आप नहीं गए। द शो मस्ट गो ऑन। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है। क्विक रिकैप, आपको क्या लगता है, व्हाट आर द की थिंग्स विच यू फेल्ट इज वैल्यू एडिशन फॉर यू? आपको लगा कि नहीं, ये चीज मैंने लर्न की है इस प्रोग्राम में और ये मुझे काम में आएगा। अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। यस मधुसूदन, इट इज कॉल्ड रेटिना एक्टिवेटिंग सिस्टम। सो संतोष जी रहते, मुझे रैस बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। सो रैस के साथ ही आप शुरुआत करेंगे ना लाइफ में, वो सक्सेस मिलेगा। यस। एंड दूसरी चीज है कि कहावत है, एम फॉर द स्टार्स सो दैट यू लैंड अप ऑन द मून। आप सितारों के लिए टारगेट करिए ताकि आप सितारे नहीं तो मून पे लैंड करेंगे, चंद्रमा पे लैंड करेंगे, और चंद्रमा पे लैंड करना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो जगदीश्वरन हैज सेड कि फैब फीचर, हम कहते हैं ये फंड का इतना 10 साल का प्रोडक्ट है, 20% का रिटर्न दिया है। अभी इंडस्ट्री में 100 ऐसे प्रोडक्ट एमएफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, इक्विटी प्रोडक्ट्स जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने 20% का रिटर्न दिया है। तो ये एक फीचर हो गया या एडवांटेज हो गया। बेनिफिट होता है कि पहले आप क्लाइंट से पूछते हैं कि हाउ डू यू फिल्टर योर प्रोडक्ट्स, what are your thoughts about investing into equities? Yeah, people now at this juncture are looking at these products. अभी लोग इस समय पे ये प्रोडक्ट्स पे देख रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? उनका पर्सपेक्टिव लेके जब आप एक प्रोडक्ट को पिच करते हैं, उसको फैबिंग कहते हैं। which means that जब भी आप अपने कॉन्वर्सेशन में 3-4 बार यूज करते हैं ना, एक फीचर जो है वो बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड हियर इज द समरी स्लाइड्स की वर्क स्मार्ट, परेटो प्रिंसिपल को फॉलो करिए, अपना वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट बनाइए। प्रोडक्ट बाद में आता है, आप क्या देते हैं, गाइडेंस देते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस देते हैं, ये आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है। प्रोडक्ट्स, उसको करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का दरवाजा खटखटाइए या किसी और का दरवाजा खटखटाइए, वो प्लान 2 है, स्टेप 2 है। स्टेप 1 है कि आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। फैबिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्शन में हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें काम रहना है, पूछना है कि अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, इट इज वैलिड, आप बताइए आप ऐसा क्यों सोचते हैं। उसके बाद एक बार आपने सुन लिया, तब आप अटैक करते हैं, तब आप हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शन को। कई बार जो ऑब्जेक्शन दिया जाते हैं इन्वेस्टर का, वो एक्चुअल ऑब्जेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे कुछ और ऑब्जेक्शन होता है। तो आइसोलेट करना पड़ता है कि सर ठीक है, हमने समझा ये चीज है, लेकिन इज दैट द ओनली थिंग जो हमारे और आपके बीच में बाधा बन के रुकी हुई है? अगर हम इसको डील करें, क्या आप हमारे साथ इन्वेस्ट करोगे? उसको कहते हैं आइसोलेशन। तो तब आपको सही ऑब्जेक्शन पता चलता है। बिजनेस म्यूचुअल फंड में आस्क करना जरूरी है। एंड वन वे टू डू इट इज जस्ट आस्क योर क्लाइंट, सर स्टार्ट विथ अ स्मॉल अमाउंट, गिव अ ट्राई। कभी कभार आप ये कह सकते हो, सर 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मंडे को मिले या संडे को मिले, 1 बजे मिले या 2 बजे मिले, वेयर शैल वी मीट? तो इफ यू हैव डन इट राइट, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। और दूसरा है कि सेल्स वन ऑफ वंडर नहीं होता है। मीटिंग्स करिए, रेगुलरली कांटेक्ट करिए, नेटवर्क इज नेटवर्क, ऑलवेज बी कनेक्टिंग। और अपने आप को कहिए कि ठीक है, लाइफ इज नॉट 100 मीटर स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, बट द शो मस्ट
go on, and I am already successful. That is reticular activating system. उसके साथ मैं इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. थैंक यू सो मच. आई होप मैंने काफी हिंदी में बात की. राइट, मिक्स क्राउड था, कुछ साउथ के भी लोग जुड़े हुए थे, कुछ ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया से भी लोग जुड़े हुए थे. यस. Hi, madam. Yes, sir. Thanks for efforts. Almost 2 hours without water. No problem. And I I could- had coffee. No problem. Yeah. Thank you so much. Madam, only one question, madam. See, Yes, yes. many investors worry about markets actually. Hmm. They're okay to invest, but they want to invest in low and get more returns. So, but as you know, globally there are so many events. Even India also Q2 earnings are bad and Q3 expected. Nobody cannot judge exactly. So, investor aware today because of AI or even smartphone, everything is aware in fingerprints. The knowledge and recommendation. Either can be FD or whatever. They are very clear, and in fact, they are much smarter than advisors today. As in, so that such a scenarios, maybe investing in mutual fund or any PMS or AF, any other asset class. How to crack, even for new investors also, how to get more leads, either through the telecalling or through the marketing activities. What is the easy? Over to you. See, I think knowledge, it's a good question, Viru. So I would say ki always share insights. They might have access to Copilot and ChatGPT and Perplexity. Even I get access. I am also investing through Grow. लेकिन ग्रो का मतलब नहीं है कि मुझे सब कुछ वहां पे मिल रहा है, ये वो. आई कुड हैव इन्वेस्टेड इन बैड प्रोडक्ट्स आल्सो. मैंने भी अपना खुद का रिसर्च करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, और उसमें मेरे ख्याल से बिटकॉइन और एथेरियम को छोड़ के बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स फ्लॉप गए हैं. एंड आई एम अ सीजन मार्केट प्रोफेशनल. तो इवन एक्सपर्ट्स नीड कोच, सबसे पहली बात है. तो ये आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा. जस्ट टेल व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मार्केट्स. आस्क द इन्वेस्टर. वो बोलेगा नहीं इतना करेक्ट हुआ है, उतना करेक्ट हुआ है. तो आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए. डेटा पॉइंट्स विच इज लाइक, मेरा एक सेशन है ऑन इक्विटी इन्वेस्टिंग की लर्निंग्स, जहां पे मैं 30 इयर्स का डेटा दिखाती हूँ कि out of 7,000 stock market days, 40% of time markets have given negative returns, anywhere between minus 0.01% to minus 12%. फिर भी अगर आप ये 20 साल, 25 साल, 10 साल के लिए भी आते, आपको निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया होगा. तो वॉलेटिलिटी हमेशा इक्विटी में था, इक्विटी में है, इक्विटी में रहेगा. और इस और आप अपना खुद का अकाउंट स्टेटमेंट, यू कैन शो योर ओन अकाउंट स्टेटमेंट. मैं अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाती हूँ कि 2014 में मैंने अपना एक SIP किया था 5,000 रुपए का. 2014 से 2024 काफी सारी इवेंट्स हुए. NDA पावर में आई, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, यू नेम इट. फिर भी मेरे पोर्टफोलियो ने 15.55% का रिटर्न दिया. एंड माई 5,000 रुपीज जो मैंने इन्वेस्ट किया था, 6 लाख, whatever, 6 लाख, इट हैज बिकम 15 lakhs. ये मेरा पॉइंट है. एंड आई शो माई ओन अकाउंट स्टेटमेंट कि इस दौरान फॉर दिस पीरियड मेरा रिटर्न नेगेटिव था, लेकिन आई डिडंट स्टॉप माई SIP, आई कंटिन्यूड माई SIP. तो the proof lies in the pudding. So informative articles, be a teacher, share some new data points, share some new perspective, be passionate about have we invested or not. And all these kind of data points, little bit of research will take you ahead. So, and some people will say, नहीं, फिर भी डर लग रहा है. कोई बात नहीं. Okay, no problem. Why डर लग रहा है तो ठीक है. Why don't you invest into a hybrid fund? You're giving an alternative. Whatever we have discussed so far, it's all negotiation. This is what is negotiation. You're giving alternatives, you're understanding the true, this one, and it goes. I hope I answer your question, Viru. Can I come in between? Amrita? Yes. Yeah. Mr. Viru, apart from this, we have a 13-point agenda, and out of this 13-point agenda, if you can see point number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and it's up to 7. All the points are basically in focus of making your new clients, making your business to grow, making your all 13 points are basically mean for your business to grow. Yeah, Viru, are you there? Mr. Viru Naidu, are you there?
I am here, sir. Keep- All right. So, Mr. Viru, first 7 points basically it mean for how you can generate the leads, how you can build the leads, and how you can cater to your clients. If you can just go through our 13-point agenda, it is one of the finest agenda what we have made by which your business can really grow. Or and if you need some help in that, certainly your relationship manager will going to help you out, and we and our team of Imperial is here to make sure that how you can really grow, because our target is that I want that Viru to have 1 lakh rupees a monthly income from his own business. Yeah, I'm done. Yeah. Any other questions? I believe Amrita will be happy to take. किसी के और भी कुछ प्रश्न है? बिकॉज अमृता मैडम फिर शायद कुछ दिनों के बाद ही मिलेंगी, इतने जल्दी पता नहीं, हमको डेट नहीं दे रही है मैडम नेक्स्ट ट्रेनिंग का. Amrita, there is one question in the chat. Yeah. Golden Circle Theory Yeah. book. It is called Start with So- Why. Start with Why by Simon Sinek. I'm writing it. Simon Sinek. I'm messaging it. In fact, in Simon Sinek, one can follow on LinkedIn also, on Instagram also, and there is a wonderful TED talk on YouTube called the Golden Circle Theory. So let me just quickly go to the YouTube and share that YouTube का link also. तो it's a one, मतलब किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. Whatever is there in the book, he has given it beautifully in a 14 minutes video TED talk. Yeah. Yes, I'm just sharing that YouTube link also on the chat box. Yeah. So I think, shall I get today's presentation? We have the recording. We can share that. Maybe the key summary points, a 2-sheeter or a 3-sheeter. We can create that and I can share it with Samir. We have already the recording, so we will going to share them. Sure. Thank you. I think there are more. We'll send this presentation across. People get it arranged. Thank you all. It's a wonderful session. A lot of insights, and I'm sure the points which have been put across in these 2 hours would help you get across meetings, get across new acquisition clients, and also be effective in the sales process. Look forward to interact you with all of you again. Thank you, Amrita, for taking out time on a Saturday, and for all you have joined us for this 2-hour session. Thank you, Deep, for giving us this opportunity to put a training session across to your sub-brokers who are spread across India, and we look forward to take it ahead. Yeah, sure. Thank you very much, each one of you. And thank you very much, Amrita. Thank you very much, Samir, and Sundaram, certainly, for arranging this session. I believe the YouTube recording link we're going to share on WhatsApp of respective partners. And Amrita, I would again request you for give your time for the next session, as I already requested to Samir. And we said you are amazingly energetic personality. Honestly, I'm telling you, such a great energy what you have. Everyone has right there into the chat box that so energy, so energy, so energy. So I believe it's the powerhouse of Sundaram is lying with Amrita, I believe, right? So thank you very much, Amrita, for such Absolutely, an absolutely. insightful session of yours. And even I get the powerful pact कि मैंने भी ज़्यादा काम करना चाहिए for each one of my partners, right? So give us the next session date as well, because we wanted to make your series of training so that the connectivity bani rahe.
Samir, please look into the dates of Amrita so that Sure. we can really I'll come back to you on the next session that next we month can and next conduct. month and next month that way, right? So that 3 months Absolutely, consecutively we can have the तो speaker की connectivity रहती है और topic एक दूसरे के साथ Absolutely. connected रहता है. So we don't want now anybody should jump into in between of you and the partners. Absolutely. We will take it ahead. हाँ, चलेगा. Thank you for this Thank you very opportunity. much each one of you. Thanks a Have lot. a Good wonderful night. weekend and wish you all a very happy new year in advance. Yes. Thank you very much. See And you yes, in even the I next also can new see year. Sameer को follow करता हूँ मैं that wishing everyone a very happy new year and very prosperous new year to each one of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Amrita. Thank you, Samir. Thank you.